Okay. Okay. Thank you, friends. Thank you. So, as you all know, today we are going to have this session about Ayurveda. And Ayurveda being an ancient science, we have lot of rich knowledge in Ayurveda. And Ayurveda also talks a lot about pregnancy. And we are into this section of pregnancy yoga. And you all know that yoga and Ayurveda have been sister sciences. So a lot of things can be correlated when you study Ayurveda, when you study yoga, and you can really understand the correlation between them. So today we have invited Dr. Mital with us, Mital Khernar. So she will be throwing light about this topic, and she has got a good experience about the pregnancy. She is a practicing doctor and purely practicing Ayurveda in Navi Mumbai, Panvel. So she has a Panchakarma clinic. Panchakarma, you all know, is a quite famous practice from Ayurveda. So she is practicing Ayurveda with Panchakarma therapy. She is a Panchbhautik Chikitsa. She is also a level 3 certified yoga teacher and evaluator. And she also runs Garbha Sanskar sessions for her clients. So, she is a very good combination of Ayurveda and yoga, and she will be a good person to, enlighten us about Ayurveda and about the connection of yoga and Ayurveda. So welcome Dr. Mital on the platform of Prana Yoga Therapy Center. A very warm welcome to you, and we thank you for accepting our invitation. Thank you, Preeti ma'am, to inviting me. The stage is yours. Mital? Yes. Erita, shall I share screen? Yes, Mital, please. I'll just make you co-host as well. Yeah. Okay, done. Yeah. Okay, my screen is visible. Yes, it is. Okay. Thank you, everyone. Thanks to Preeti ma'am and Prana Yoga Therapy Center. Myself, Dr. Mital Khernar. आज हम गर्भ संस्कार आयुर्वेद और योगा उसके बारे में बात करने वाले हैं. It's not a lecture, it's a talk between you and me. So let's start. But I have some network issues. तो मैं मेरा कैमरा ऑफ कर रही हूँ. So please don't be get conscious. Okay, let's start with the गर्भ संस्कार and yoga. यहाँ पे जो सब लोग हैं तो मैं समझती हूँ कि सब योगा टीचर है. तो मेरा जो लेक्चर है आज वो अकॉर्डिंग टू योगा टीचर्स के हिसाब से है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वी ऑल आर वीमेन. तो ये जो लेक्चर है आपके खुद के लिए भी है. और सेकंड थिंग, आप एज अ टीचर जिनको सिखाने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को भी इस नॉलेज का फायदा होने वाला है. इसके हिसाब से आज का लेक्चर जो है वो मैंने अरेंज किया है. Something is problematic. या आप लोग देख रहे हैं कि कितना एक ब्यूटीफुल होम आपके सामने है. अगर आप मुझे अभी बताओ कि अगर आप में से कोई भी एक घर लेना चाहेगा तो आप क्या क्या सोचते हो, या फिर जब आपने आपका पहला घर लिया होगा तब आपने क्या क्या सोचा था उस घर के बारे में. प्लीज एवरीवन आंसर सो वी कैन गो विथ इट. Location. Yes, location.
construction is also good. Yeah, construction, who The is going to near- construct it. Nearby environment, the neighborhood. Yes, environment, neighborhood, then It should pocket decor, yes, interior, कलर्स कैसे होंगे घर के, फ्लोरिंग कैसा होगा, कर्टन्स कैसे होंगे, एंड सो ऑन. और अगर फ्लैट ले रहे हैं तो कौन सा फ्लोर है, लिफ्ट है क्या, एमिनिटीज है क्या, स्विमिंग पूल है क्या, कितनी सारी चीजें हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. देन सेकंड, व्हेन यू प्लान अ फॉरेन ट्रिप, अगर आपको किसी ने फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए बोला है तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं उसके लिए? पहले तो बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे. Yes, exactly. You Then will see. First, you will book your tickets. Then Yeah. you will see which hotel you will stay. okay, That particular place, the hotel should be situated nearby the your where you want location. to go. Yeah, Up. it should be centrally located. Okay. देन ट्रैवल एजेंट कौन है, फिर वीसा के लिए भागदौड़ शुरू रहेगी, फिर एक अच्छा सा DSLR कैमरा ले लेंगे, फिर बहुत सारी शॉपिंग हो जाएगी. तो इतना सब हम फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान करते हैं, राइट? और अगर हमें कोई मोबाइल लेना होगा तो, या फिर कोई भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक गैजेट आते हैं जैसे माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर टीवी हो गया, तो उसके बारे में अगर आपको लेना है तो आप क्या क्या सर्च करते हैं मार्केट में? First of all, the brand, the latest Yes. technology, the brand which you are comfortable in, Yeah. the size Okay. should be a smart TV, and the maximum we can get from the money which we invest. Low, Okay. ma'am, low maintenance. It should be low maintenance. Get. Yeah, low maintenance is the most important one. ओके, ठीक है. अभी आप मुझे बताओ कि जब आप एक घर लेते हो तो आप उसके बारे में इतना क्यों प्लान करते हैं? फाइनेंशियल हम लोग बहुत सारा प्लान करते हैं कि हम लोगों को हाँ इतने बजट में कहाँ पे सबसे अच्छा कहाँ पे मिलेगा, ये हम देखते हैं, राइट? और उसमें मुझे लगता है कि कितने महीनों तक हमारे घर में उस पर डिस्कशन चलता है, कितना लोन लेना है, कितना क्या करना है, व्हाटएवर. तो इतना सारा प्लानिंग, कुछ महीनों का प्लानिंग हमारे घर के लिए जाता है. तो क्यों हम इतना प्लानिंग करते हैं एक घर लेने के लिए? Because it's a big investment and you are staying there. Okay. You will be staying. It's a dream of Yeah. every family. परफेक्ट, इट्स अ ड्रीम. ओके, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो फिर आप इतना तैयारी क्यों करते हैं? Again, a huge investment. To make good memories. या मेमोरीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लाइफ टाइम मेमोरीज रहती है कि जिससे हम कभी भी याद कर सकते हैं, या फिर हम उसको वो जो पल हमने एंजॉय किया था वो पल हम लोगों को जिंदगी भर खुशी दे सकते हैं. ओके, लेकिन अगर फिर हम मोबाइल या फिर इलेक्ट्रिक गैजेट लेते हैं तो उसके लिए Yes. इतना सर्च क्यों? You not so हम लोग इतना much पैसा like जो a इन्वेस्ट house. कर रहे हैं तो उसके बदले में हम लोगों को उतने रिटर्न्स भी तो आने चाहिए ना. आई मीन उतना अच्छा मोबाइल भी चाहिए तो ऑब्वियसली हम लोग सर्च कर लेंगे ना. यस. तो ये सब इतना सब हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते रहते हैं. देन व्हाई नॉट फॉर अ बेबी? जब हम बेबी के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे लाइफ से लाइफ टाइम के लिए जुड़ा है और हमारे लाइफ के बाद भी हमसे जुड़ा रहता है. तो इस बेबी के लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्या? जरूर करनी चाहिए, और करते भी है बहुत सारे लोग. लेकिन किस तरीके से प्लानिंग करते हैं? एक बहुत अच्छा एक्सपेंसिव गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढ लेंगे और उसके पास हम जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं. देन सेकंड वन इज आप बोलेंगे कि हाँ मैंने एक 5 स्टार हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन किया है, और फिर ऐसा भी प्लानिंग करते हैं कि नहीं अभी मेरा करियर का पीक चल रहा है, कुछ प्रमोशन के बाद में फिर एक सडन प्रमोशन होगा इस महीने में मेरा, और फिर उसके बाद मुझे ये करना है, राइट? डिलीवरी डेट आनी चाहिए. ये सब बातें जो है वो हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचते रहते हैं. लेकिन क्या इतना समझना काफी होता है? इज इट ओके? नो. अगर एक अच्छा बच्चा और एक अच्छी संतति चाहिए होगी तो हम लोगों को गर्भ संस्कार
जरूरी होता है. Then what is why we do need गर्भ संस्कार? क्यों आपको गर्भ संस्कार की जरूरत पड़ती है? या फिर आप में से गर्भ संस्कार क्या है? क्या आप लोग गर्भ संस्कार के बारे में क्या समझते हैं? प्लीज एनीवन. मुझे लगता है कि गर्भ संस्कार मीन्स जब अपने बच्चा अपने पेट में होगा तब उसके ऊपर हम लोग अच्छा संस्कार कर लेंगे, या फिर उसकी हेल्थ अच्छी हो इसके लिए हम लोग कुछ योगा या फिर ऐसे कुछ ट्राई कर लेंगे, या फिर अच्छी हेल्थ रखेंगे खुद की भी तो बच्चे की भी अच्छी हेल्थ हो जाएगी. ओके. अभी हम देखते हैं कि भाई वी नीड गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार हमारे लिए क्यों जरूरी है? टू क्रिएट हेल्दी, इंटेलिजेंट और डिवाइन बेबी के लिए जरूरी होता है, जैसे अभी प्रियंका ने बताया. सेकंड वन इज कि हम लोगों को जो बेटर प्रोजेनी है, जो संतति है, वो और अच्छे होने के लिए है. देन अगर वो बेबी अच्छा होगा तो वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा, वो गुड सिटीजन बन पाएगा, इसीलिए जरूरी है. उसके बाद अगर पूछा जाए, अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो फिर वो अच्छा एक देश के लिए अच्छा निर्माण कर सकते हैं, और जिस देश में मानवता, ह्यूमैनिटी एट लार्ज हो सकती है. बट गर्भ संस्कार इट्स नॉट अ मैजिक. मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं कि हाँ, अभी हम लोगों ने गर्भ संस्कार कर लिया तो मेरे बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा, वो क्लास में हमेशा टॉप आएगा. इट्स नॉट अ मैजिक, it's a science to have a children with as many as good qualities possible, right? It is also proven by the technology also. तो गर्भ संस्कार में आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या आता है? 3 चीजें आती हैं, उसे त्रिसूत्री बोलते हैं: आहार, विहार और औषधि. अभी हम ये आहार क्या है वो देखते हैं. आहार जो है, आयुर्वेदा ने जो डिस्क्राइब किया है वो मंथली डाइट डिस्क्राइब किया है, जो उसे हम पथ्य बोल सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और उसकी इफेक्ट्स, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऐसे दोनों ही बताए हैं आहार में. विहार जो रहता है वो है गर्भवती स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, या फिर किस चीज से उसको नुकसान होता है. ये जो है वो गर्भोपघातकर भाव में लिखा गया है. दैट इज अ फैक्टर्स लाइकली टू हार्म द फीटस. ये सब विहार में आता है. लेकिन विहार में और कुछ चीजें हम योगा से जोड़ सकते हैं, जैसे योगासन हो गए, डीप ब्रीदिंग हो गया, प्राणायाम हो गए, और योग निद्रा भी उसी में आती है. उसके साथ ही हम कुछ एक्टिविटीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे विजन फॉर बेबी या ओम टॉक, ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज द औषधि. इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन्स व्हिच आर डेवलप्ड इन द स्पेसिफिक मंथ. आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हर ऑर्गन जो है वो किसी स्पेसिफिक मंथ में उसको स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसके हिसाब से औषधि जो है वो ऐड की गई है, जो हम आगे देखने ही वाले हैं. लेकिन जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको. जैसे आयुर्वेद ने कहा है कि चतुर्थे हृदय, मतलब 4th मंथ में हृदय, हार्ट तैयार होता है, बेबी का डेवलप होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसके हिसाब से दाढ़ी मादी ग्रोथ वहां पे ऐड करने के लिए बोला है. ये जो औषधि है वो उसमें स्पेसिफिकेशन हो जाती है. अल्सो ये जो औषधि है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, बेबी और माँ, ऐसे दोनों की. आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ये जो गर्भ संस्कार के लिए, माता के लिए कितना जरूरी है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जाना, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो गर्भिणी व्याकरण करके उसमें आया हुआ है. इसमें क्या चीजें आती है, अलग अलग चैप्टर है, जैसे जनरल मैनेजमेंट उसमें आ जाता है, जैसे डिसीज इन प्रेगनेंसी आ जाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट. और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में जो उसको हम सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं उसे भी डिस्क्राइब किया गया है एज अ वामदेवीय प्रसव के हिसाब से. और फिर उसमें सुतिका परिचर्या और बहुत सारी चीजें जो है हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो सब चीजें आयुर्वेद ने गर्भ संस्कार, गर्भिणी व्याकरण के अंदर डिस्क्राइब किए हैं. इसमें स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि आहार मीन्स डाइट, विहार मीन्स एक्टिविटीज,
आचार मीन्स बिहेवियर, एंड विचार दैट इज द मेंटल एक्टिविटी, इन सब का विचार आयुर्वेद ने किया हुआ है। आयुर्वेद में जो एक इतना सब विचार इसके लिए जब किया है, तो गर्भिणी के लिए क्या उन्होंने बोला है कि जैसे हम बोलते हैं ये इसके जैसा होता है, तो सपोज आपके हाथ में एक मैंने कटोरी दे दी और वो तेल से कंप्लीट फुल है, और आपको बोला कि आप एक घर से दूसरे घर तक जाओ, तो आप उसको कितना संभाल के ले जाएंगे, और उसमें एक कंडीशन रहेगी कि एक बूंद भी नीचे नहीं जाना चाहिए। देन यू हैव टू वेरी वेरी अलर्ट अबाउट इट कि एक बूंद भी नीचे नहीं जाना है। तो उसी की तरह से गर्भवती स्त्री को कैसे उसका केयर करनी चाहिए, दैट इज लाइक अ वेसल फिल्ड विथ ऑयल। जैसे हम एक कटोरी भर ऑयल का केयर करेंगे कि हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उसके हिसाब से हम लोग वो गर्भिणी स्त्री की केयर करनी चाहिए। फाइनली इतना सब तो हो गया, लेकिन गर्भ संस्कार है क्या फिर एक्चुअली? देन गर्भ संस्कार ये जो है वो दो अक्षर से बना है, एक है गर्भ और एक है संस्कार। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद हिसाब से गर्भ क्या है। गर्भ के लिए डेफिनेशन दी है आयुर्वेद ने, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब क्या है? शुक्र दैट इज द स्पर्म, शोणित दैट इज अ आर्तव, इसको हम ओहम भी कह सकते हैं, और फिर आत्मा या फिर जीव, ये सब इनसाइड द कुक्षी मीन्स यूटेरस के अंदर जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो सब एक हो जाते हैं, और उसके बाद गर्भ की निर्मिति होती है। देन व्हाट इज अ संस्कार? संस्कार ही गुणांतर धारणा। संस्कार ये एक प्रोसेस होती है। हम किसी भी चीज पे कुछ भी उसको और अच्छा बनाने के लिए जो भी कुछ उस पे प्रोसेस करते हैं उसे हम संस्कार कह सकते हैं। संस्कार processes by which positive qualities in man are developed, enhanced and eliminated the bad ones is known as a संस्कारा। जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है वो हमको डेवलप करनी है, एनहांस करनी है, और बैड वन संस्कार जो है वो हमें कम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में गेहूं रहता है तो आप उससे तुरंत रोटी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। हम गेहूं लाएंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर उसका आटा गूंथेंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे और फिर उसको सेकेंगे। मतलब जो गेहूं हम सीधा खाएंगे तो आई थिंक आप सबको पेट दर्द शुरू हो जाएगा, राइट? तो वो हम वैसे ही नहीं खा सकते। तो हर चीज के लिए हम एक संस्कार करते हैं, और जो संस्कार से उसकी जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज बढ़ाते हैं। तो वैसे ही गर्भ पे ऊपर भी हम कुछ संस्कार करते हैं और उससे गर्भ की क्वालिटीज बढ़ाने में मदद होते हैं। आयुर्वेदा बिलीव्स इन फिजियोलॉजिकल बेस्ट क्वालिटी ऑफ बीज उसमें देखा जाता है, साइकोलॉजिकल जिसमें आत्मा या जीव आता है, जो आपके पुण्य कर्म से अच्छा जीव या आत्मा आपके तरफ अट्रैक्ट होता है, और मेंटली रहता है कि प्रिपरेशन जो पेरेंट्स फॉर मदरहुड, आई एम नॉट सेइंग द फादरहुड आल्सो, इट्स ओनली मदरहुड। जो पेरेंट्स है उन लोगों का जो मेंटली प्रिपरेशन होना है, सिर्फ माँ का नहीं होना चाहिए, दोनों पेरेंट्स का जो प्रिपरेशन होना चाहिए, दोनों को जो बच्चे की चाह होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर उसके बाद हमें जो बेबी मिलेगा वो दैट वन इज अचीविंग अ बेटर एंड डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग। अभी हम बेनिफिट्स ऑफ द गर्भ संस्कार क्यों है गर्भ संस्कार, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया, लेकिन गर्भ संस्कार क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द टू द बेबी। इसके बेनिफिट्स किस किस को होते हैं? टू द बेबी, टू द मदर एंड टू द नेशन। अब हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हर किसी को होते हैं। टू द बेबी, टू इनकैल्यूट द डिजायर क्वालिटीज, जैसे आपको अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप उसके जो क्वालिटीज है वो ऐड कर सकते हैं। इनहांस द एग्जिस्टिंग क्वालिटीज, जो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज है उसको हमें बढ़ाना है। ये दोनों चीजों के लिए जो विजन लिखा जाता है या विजन करके जो एक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छे से उसका फायदा होता है।
बेबी के लिए नो एनामोलिज, इट्स इंक्रीज इंटेलिजेंस, बेबी का इंटेलिजेंस बढ़ने में मदद होता है, ओवरऑल ग्रोथ और फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, और कि इसके हिसाब से ही also increases the spiritual, mental, emotional power of child. ये इंटेलिजेंस कैसे बढ़ना है, या फिर ओवरऑल ग्रोथ या फिजिकल फिटनेस कैसे होगी, या नो एनिमोलिज कैसे पॉसिबल है, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं. देन टू द मदर, प्रेगनेंसी अगर आप लेडी देखेंगे और उसको अनएक्सपेक्टेडली प्रेगनेंसी रह गई है, तो उसके बहुत सारे दिन ऐसे ही चले जाते कि यार मुझे नहीं चाहिए था बच्चा अभी, लेकिन हो गया है अभी प्रेगनेंसी, और वो बहुत कंफ्यूज माइंड में रहती है कि उसके शरीर में बहुत सारे अचानक से चेंजेस होने लगते हैं, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस आ जाता है, या फिर उसको नौशिया ओमिटिंग हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं. तो ये जो एक जर्नी है वो कंप्लीटली एक इरिटेबल जर्नी उसको लगने लगती है. तो इस इरिटेबल जर्नी को उसको एक मेमोरेबल जर्नी बनाने के लिए हम गर्भ संस्कार का यूज कर सकते हैं. एक ट्रबल फ्री एंड डिसीज फ्री प्रेगनेंसी हम गर्भ संस्कार की मदद से उसको दे सकते हैं. ड्यूरिंग गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी में उसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो या फिर कम से कम हो, इसीलिए गर्भ संस्कार यूजफुल है. एंश्योर द नेचुरल डिलीवरी if there is not an anatomical defect, and better postnatal recovery. जो postpartum डिप्रेशन है, या फिर उसके खुद के बॉडी की जो उसमें एनर्जी चली जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, वो सब एनर्जी गेन करने के लिए, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है उसके लिए टू द मदर गर्भ संस्कार बहुत ही अच्छा काम करता है. टू द सोसाइटी, द मोस्ट वन इम्पोर्टेंट, जैसे हम एक अच्छे बेबी के लिए इच्छा करते हैं, अगर हर कोई एक अच्छा बेबी के लिए विचार करेगा तो उसे जो सोसाइटी होगी वो सोसाइटी को भी बेनिफिट्स होता है. तो इससे मैं बोलती हूँ कि स्वार्थ के साथ आप लोग परमार्थ भी साधते हैं. एक अच्छा बेबी एक अच्छा नागरिक बनता है, फिर उसके हिसाब से एक अच्छा नेशन और एक अच्छा सोसाइटी उसमें निर्माण होती है. To ensure the future citizens are healthy, intelligent, and physically fit, culturally and morally rich, और श्रेयसी प्रजा. जैसे आप लोगों ने कठोपनिषद में देखा होगा कि श्रेयसी क्या है और प्रेयसी क्या है. जो प्रेयसी रहता है वो सिर्फ एक किसी भी हिसाब से उसको सिर्फ सक्सेस चाहिए, लेकिन श्रेयसी जो प्रजा रहती है उनको सक्सेस मिलने के लिए वो जो राइट वे होगा, सिर्फ वो राइट वे से ही उसको जानते हैं या फिर उसी मार्ग पे वो चलते हैं. फिर अभी हो गए संस्कार. हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे संस्कार दिए हुए हैं. जैसे गौतम स्मृति में सबसे ज्यादा 40 संस्कारों का वर्णन किया है, वही व्यास स्मृति में अराउंड 16 संस्कारों का वर्णन किया है, जो हम आज फॉलो किए जाते हैं. मोस्टली वही संस्कार हम लोग देखते जाते हैं. जो फर्स्ट संस्कार होता है वो है गर्भाधान संस्कार, और उसके बाद जो आते हैं वो सब संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार जो है उसमें लास्ट आता है. तो ये संस्कार कैसे कैसे और किस स्टेज पे होते हैं, हर एक स्टेज पे, मतलब जैसे आप कोई चेंजेस या फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट आपके बॉडी में हो रहा है, तो उस वक्त ये संस्कार किए जाते हैं, जो आपका आगे का मार्ग जो है वो अच्छा होने लगता है. फर्स्ट वन इज द गर्भाधान संस्कार. ये हमारा पहला संस्कार होता है कि ये संस्कार 16 संस्कारों में पहला आता है. अगर पूछा जाए तो लाइफ जो है वो लाइफ की जो बिगनिंग है वो कहाँ से होती है. हर कोई बोलेगा कि हाँ, बेबी जब फर्स्ट ब्रीथ करता है वहां से उसकी लाइफ की बिगनिंग शुरू होगी. नो, ए ट्रू बिगनिंग ऑफ लाइफ इज द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन. जब उसको शुक्र शोणित जीव संयोगे, वो जब होता है उसी वक्त उसकी लाइफ की बिगनिंग होती है. जब हम उसका बर्थ सेलिब्रेट करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों को उसके कंसेप्शन के बारे में सोचना चाहिए. इसके जरिए वो सृष्टि में जीवन की प्रक्रिया आरंभ करता है. दैट वन इज द गर्भाधान संस्कार इज द इम्पोर्टेंट.
जब किसी भी कपल का विवाह होता है तो उसका जो गृहस्थ आश्रम रहता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में आश्रम बताया है, तो उसमें से जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो संतान उत्पत्ति माना जाता है। और हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ संतान के लिए आचार्यों ने अलग अलग विधि दिए हैं, और वो विधि जो है वो जो आवश्यक कर्म किए जाते हैं उसे गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इस गर्भाधान संस्कार से क्या होता है, जो जीव पूर्व जन्म के जो उसमें कुछ संस्कार या फिर उसके चित्त पे जो कोई इम्प्रेशंस रह जाते हैं वो दूर करने के लिए और उसको अच्छे गुणों में उसकी एडिशन करने के लिए ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। पुराने जमाने में प्रेग्नेंसी रहना या फिर एक बेबी को जन्म देना ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट की चीज नहीं थी, एक मनोरंजन नहीं था, उसमें उसके लिए एक बहुत सामाजिक उत्तरदायित्व उसमें छुपा रहता था। जैसे कि एक गर्भाधान संस्कार में एक यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में क्या होता था कि स्पेसिफिकली आजू बाजू के जो बड़े लोग रहते हैं उनको बुलाया जाता है, या फिर उनको समाज को ये बताया जाता है एक प्रकार से कि हम दोनों अभी एक संतान के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, तो अगर समाज के जो बड़े हैं उनको अगर लगता है कि हाँ ये जो कपल है ये अभी ये जिम्मेदारी संभालने के लिए योग्य है, तो वो उसको आज्ञा देते थे कि हाँ आप अभी गर्भाधान संस्कार कर सकते हैं। इतना सब सच में होता था? हाँ, इतना सब होता था, और इसी के हिसाब से जो प्रजा होती है वो प्रजा निर्माण होती थी, जो स्वयं शासित, जैसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने जमाने में एक स्वयं शासित समाज निर्माण किया था। उसमें ना कोई राजा था, ना कोई रूल्स उसको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने में वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन वो समाज अपने खुद के हिसाब से सब मैनेज कर रहा था। ये क्यों पॉसिबल था? तो ये जो संस्कार से, ये संस्कारों के ऊपर उन्होंने पहले से ही एक ऐसी कम्युनिटी बना दी थी कि जिससे जो भी प्रजा, जो भी नागरिक निर्माण होगा वो उसी हिसाब से या उसी स्टैंडर्ड का होगा। गर्भाधान संस्कार में एक यज्ञ किया जाता है, दैट वन इज द पुत्रेष्टि यज्ञ। ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ था, ये पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद एक श्लोक बोला जाता था। यहाँ पे मैंने श्लोक दिया हुआ है। हम लोग मतलब आज के जमाने में सिर्फ सेक्स हो जाता है, कभी कभी प्लानिंग के साथ, या फिर बाय डिफॉल्ट प्रेगनेंसी रह जाती थी। लेकिन गर्भाधान संस्कार एक ऐसा है कि जब आप अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं एक बेबी के लिए, तो उसको इतना पवित्र बनाया गया है कि उसके बिफोर क्वार्टर्स भी उसमें एक श्लोक बोला जाता है, और उस श्लोक में बताया गया है कि अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धातात्वा दधातु विधाता वा दधातु ब्रह्मवर्चसा भवैति। ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोमः सूर्यस्तथा अश्विनौ भगो अथो मित्र वरुणौ विरम ददातु मे सुतम। इसका मतलब होता है कि हे गर्भ, तुम सूर्य के समान हो, तुम आयु हो, आयुरसी, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठासी, धातात्वा मतलब धारण करने वाला जो ईश्वर है वो, और विधाता जो विश्व का निर्माण करने वाला है, जो ब्रह्मा है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम खुद भी ब्रह्मा से युक्त हो जाओगे। इसके बाद बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, सोम, सूर्य और अश्विनी कुमार, और उसके साथ ही मित्र वरुण, जो भी ये दिव्य देवता थे, वो देवताओं से उन्होंने प्रार्थना की है कि वो शक्ति रूप में मुझे एक वीर पुत्र प्रदान करे। इस मंत्र को पढ़कर अगर सहवास किया जाता है तो आप सोचो, कभी प्रेगनेंसी जब रहती है तब कितने सारे लोगों की प्रेगनेंसी बाय चांस ऐसे ही रह जाती है। तो आयुर्वेद ने इतना डीपली विचार किया है कि एक प्रेगनेंसी रहने के पीछे भी इतना सारा हम लोगों को सोचना चाहिए। दैट वन इज द गर्भधान संस्कार। नेक्स्ट वन इज द पुंसवन संस्कार। ये जो संस्कार है वो गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से उपयोगी किया जाता है। ये जो संस्कार है ये
दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। गर्भ बाहर आने के बाद तो हम सभी उसकी केयर करते हैं, लेकिन कुसंवन संस्कार ये इसलिए रहता है कि माता पिता को उसके बारे में, अभी गर्भ तो रह गया है, लेकिन उसके साथ या फिर आजू बाजू के जो लोग हैं उनको उस कपल के साथ कैसे तरह से व्यवहार होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका आहार कैसा होना चाहिए, उनका चिंतन जो है वो उसमें किया जाता है, जो गर्भ को उत्तम और संतुलित बनाने में प्रयास करता है। ये जो संस्कार है वो वेद मंत्रों और यज्ञों के साथ किए जाते हैं, जिसमें परिजनों को ये प्रेरणा मिलती है, भावी जो माता है उसकी मनस्थिति अच्छा रहने के लिए परिस्थितियां कैसे निर्माण करना चाहिए और फिर किस तरह से उसको विकसित करते हैं। ये संस्कार के मेनली 2 उद्देश्य किए हैं। जो पहला उद्देश्य है वो बहुत, अभी मैं बोलूंगी कि उसको बदनाम किया गया है, दैट वन इज कि सिर्फ एक मनोवांछित संतति के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसका साइंटिफिकली आप अगर देखेंगे तो उसका सेकंड जो है वो विद इन गर्भ रहने के बाद विद इन 40 डेज में ये संस्कार करना है। तो ये जो संस्कार है उस वक्त हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती रहती है। तो अगर आप ये संस्कार करते हैं, ये संस्कार नासा में कुछ औषधि मेडिसिन के ड्रॉप डाले जाते हैं, तो उसमें पिट्यूटरी जो है वो अच्छे से डेवलप होती है, जो हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अगर आप पिट्यूटरी के डेवलपमेंट के वक्त अगर ये संस्कार करते हैं, तो आगे जाके जो बच्चों को थायराइड प्रॉब्लम या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस को सफर करना पड़ता है, उसके लिए ये बेटर संस्कार यहाँ पे काम करता है। Then third one is the सीमंतनयन संस्कार। सीमंतनयन संस्कार जो है वो संस्कार तीसरा संस्कार आता है। यह संस्कार 6ठे या 8वें महीने भी किया जाता है। इस संस्कार का जो फल रहता है वो है कि गर्भिणी को और गर्भिणी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा करना है, और इस माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए जो सौभाग्यवती स्त्रियां रहती है, जो बड़ी ब्राह्मण स्त्रियां रहती है, वो उसकी मांग भरते हैं। और यह संस्कार जो है इसके बाद इसमें क्या होता है एक प्रकार से कि ये सब जो बड़े बुजुर्ग उस संस्कार के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो एक प्रकार से काउंसलिंग करते हैं कि हाँ अभी तुम्हारी डिलीवरी आने वाली है तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस जो है उससे शेयर करते हैं, उसका धीरज बंधाते हैं कि हाँ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि जो भी होगा प्रेगनेंसी डिलीवरी में वो सब अच्छा होने वाला है। दैट वन इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग उसमें आती है कि उसमें बहुत सारे फूलों से सब सजाया जाता है। एक एरोमा थेरेपी का भी वो गर्भिणी स्त्री के मन के ऊपर उसको अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आज के जमाने में भी हम लोग ये संस्कार करते हैं। आप में से कोई जानता है ये संस्कार क्या नाम से जाना जाता है आज? Baby shower. या ट्रू, बेबी शावर। लेकिन अभी आप देखो मैंने ये जो संस्कार बोला है और बेबी शावर, उसमें क्या समानता रह जाती है? बेबी शावर या फिर गोद भराई ये सब है, लेकिन ये जो संस्कार है ये संस्कार का आज काफी हद तक विडंबन कर दिया गया है। जैसे किसी होटल में या फिर पार्टी लॉन्स में या फिर कोई हॉल बुक कर लिया और वहां पे सब अच्छा सा डेकोरेशन हो गया है। लेकिन इसमें फिर क्या डाइट रहता है, पानी पूरी रहेगी, चाइनीज रहेगा या फिर और कुछ उसके स्टॉल लगाए जाएंगे, और वो गर्भिणी हर जगह जाके कुछ ना कुछ तो उसका तो मन करता ही ये सब चीजें देखकर खाने के। इज इट गुड फॉर बेबीज हेल्थ एंड मदर्स हेल्थ? नो। हमारा जो एक संस्कार है वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन बन के रह गया है, तो इसके बारे में हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करती बोल रही हूँ कि आप लोग ये मत करो, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य है उसके साथ अगर आप ये करेंगे तो वो गर्भिणी स्त्री के लिए और उस गर्भ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी फ्रॉम हिस्ट्री हमारे इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है गर्भ संस्कार के? एनीवन? अरे गर्भ संस्कार के एग्जाम्पल नहीं पता आप लोगों को? प्लीज प्लीज कम।
मुझे और- नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अर्जुन। किसी ने कोई, हाँ, अभिमन्यु, अभिमन्यु, या अभिमन्यु, यस। यस, मोस्ट फेमस। मोस्ट फेमस। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर अभिमन्यु का नाम नहीं आएगा ना, तो कोई भी गर्भ संस्कार का लेक्चर कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। True. 1 minute, I have some problem to share my screen. I'm just going to do it. Okay, अभिमन्यु, ठीक है। और क्या क्या नाम बताए, प्लीज रिपीट अगेन। ओके, अभी आप मुझे बताओ कि अभिमन्यु की स्टोरी तो सबको पता है कि उसने कृष्ण से, या फिर कुछ बार ऐसा भी बोला जाता है कि अर्जुन से चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की स्टोरी उसने सुनी, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सुभद्रा सो गई थी, तो उन्होंने आगे की स्टोरी बताई नहीं, इसलिए अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की याद था। लेकिन आप मुझे बताओ कि अभिमन्यु का जब वध हुआ वो 16 ईयर का था, और उसका जो औहदा था वो महारथी का था। डू यू नो वो महारथी मतलब क्या है? कि जैसे अभी अर्धरथी, रथी और महारथी, मतलब वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, और वो योद्धा था तो उसके बीच में उसने तो युद्ध कला का तो शिक्षण लिया ही होगा, अपने अर्जुन से लिया, पिता से, या फिर जब अर्जुन वनवास में गया तो वो कृष्ण के पास था, तो वो कृष्ण से भी उसने वो शिक्षा ली। तो इस सब के बीच में उसे एक बार भी याद नहीं आया कि अरे मैंने तो ये आधा ही सुना है तो मुझे पूरा याद करना है। लेकिन वो ड्यूरिंग 16 इयर्स में उसको एक बार भी उसको याद नहीं आया कि मुझे ये पूछना है। आपको पता है कि क्यों 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 ऐसा किया उसने? वो तो पूछ सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं पूछा? एनी गेस? आपके मन में ये सवाल नहीं आया क्या कभी? मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आया था जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला। he must have thought कि whatever he knows is sufficient for him. इससे ज्यादा उसको जानना नहीं है. Father he did not tell because of that. ओके, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि उसको चक्रव्यूह में जाना आता है या नहीं है। तो लेकिन इसका जो है ना, मैंने बोला कि इट्स नॉट अ मैजिक। आप जो भी सिखाओगे वो बच्चा बाहर आके जैसे कि वैसे नहीं उसको एक्ट करने वाला है। वो कब उसका यूज करेगा? जब उसको जीवन में उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट? उसको जीवन में उसकी पहले चक्रव्यूह में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसलिए उसको उसका याद ही नहीं आया। वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था उसके। लेकिन जैसे ही उसको एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई उसके आजू बाजू की, जब उसको सबकॉन्शियस माइंड उसका अलर्ट हो गया, और उस सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होने के बाद उसे लगा कि हाँ यार मुझे आता है, ये मैंने किया है, ये मैंने सुना है ये, तो इसके हिसाब से आप ये देख सकते हो। और एक एग्जांपल इसके बारे में देना चाहूंगी कि हनुमान, आपको पता है जो हनुमान की माता थी अंजनी, और वो शिव की और सूर्य की बहुत बड़ी उपासक थी। जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ वो सूर्य की तरफ लपके, लेकिन उसके बाद कुछ अनकॉन्शियस हो गए और वो सब भूल गए थे। उनके पास इतनी क्षमता थी, लेकिन जब लंका जाने के बाद आए तो सबसे पहले ना बोलने वाले हनुमान थे। फिर बाकी जो लोग थे, सुग्रीव और जो लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि नहीं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। तब हनुमान को जाके याद आया कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। इट इज अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन द गर्भ संस्कार। जो भी आप करते हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि नहीं यार मैंने तो इतनी सारी भगवत गीता सुनी है लेकिन मेरे बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, मैं तो इसको कितना ये कर रही हूँ। उसको जब जीवन में जरूरत पड़ेगी वो उसको जरूर अप्लाई करेगा। यहाँ पे मेरे पास ऐसे भी है कपल्स जो है मेरे स्टूडेंट गर्भ संस्कार के, जिसे लॉजिक बहुत पसंद था, और वो लॉजिक क्वेश्चंस थे वो बहुत सॉल्व करती थी। उसका बेबी आज जो बड़ा हो गया है 7-8 साल का, वो जो रूबिक क्यूब रहता है वो उसको विद इन 1 मिनट में मतलब कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। तो ये सब चीजें रहती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसको विश्वास के साथ करना जरूरी रहता है। सेकंड वन इज द, मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ का गर्भ संस्कार में गर्भाधान में वर्णन किया था। दैट वन इज द दशरथ और राम। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, फिर उसके बाद जो पायस आया उसको उन्होंने उसके रानियों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड वन इज द प्रहलाद। जब उसके पिता तप करने के लिए
जंगल में चले गए तो उसकी माता जो है कयाधु, वो माता नारद मुनि के आश्रम में थे। उसके पिता एक असुर राजा थे, लेकिन फिर भी नारद मुनि के इसमें जो उसने नारायण का जप सुना था, वो उसके मन में इतना कॉन्शियसली बैठ गया था, सबकॉन्शियसली उसके अंदर चित्त के उसका इतना इंप्रेशन था कि वो जन्म से ही उसको नारायण नारायण बात करनी शुरू कर दी थी। सेकंड वन इज सॉरी, ये है शिवाजी महाराज। आप लोगों को उसकी सब स्टोरी पता है। ये है एक कोई गेस करेगा ये किसकी पिक्चर है? ये है राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, जो एक गर्भ संस्कार के गर्भावस्था के पहले वो एक जंगल में महर्षि वशिष्ठ के पास चले गए थे और उन्होंने वहां पे ये जो नंदिनी गाय है उसकी सेवा की। फिर वहां पे उन्होंने जो आश्रम का आहार विहार विचार उनके साथ वो रहे, और फिर उसके बाद उनको जो प्रेगनेंसी रही वो है राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश जाना जाता है। अभी आप लोग देखो कि रघुवंश जिस वंश में राम का जन्म हुआ है, फिर भी उस वंश को किस नाम से पुकारा जाता है? रघुवंश के नाम से पुकारा जाता है। इतनी क्वालिटीज उस राजा में थे, रघु में थे। ये क्यों थे? ये सब ये गर्भ संस्कार की वजह से था। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत अच्छे से रघुवंश में महर्षि कालिदास का जो महाकाव्य है, वो महाकाव्य में इतना अच्छा बताया है कि आप एक बार अगर पॉसिबल है तो जरूर पढ़ाई। और इसमें बेस्ट ऑफ बात यह है कि महर्षि कालिदास ने उन्होंने गर्भिणी के जो साइंस और सिम्टम्स है जो आज एनाटॉमिकल इसमें परफेक्टली मैच होते हैं, वो भी सब उन्होंने दिया है। द लास्ट वन इज द रानी मदालसा। इनकी स्टोरी आपको पता है। इनके पुत्र हुए थे 3 पुत्र। इन्होंने गर्भावस्था में भी उनको संन्यास ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन किया था। इससे जैसे ही वो पुत्र बड़े हुए, वो तीनों पुत्र संन्यास लेके चले गए। तो जब उनके पति राजा ऋतुध्वज उनके पास आए तो बोले कि अरे ये तो तीनों ही पुत्र चले गए, मेरा राज्य कौन संभालेगा? तो मुझे ऐसा पुत्र दो कि जो मेरा राज्य संभालेगा। तो फिर उस वक्त रानी मदालसा ने उसको राजविद्या की दीक्षा दी या फिर उसका शिक्षण दिया और वो एक महान सम्राट बना। ये रानी मदालसा का है ना, आपको YouTube में एक बहुत अच्छा गीत भी जो उसके बच्चों को वो सुनाती थी, जो मार्कंडेय पुराण में आया हुआ है, तो वो भी आपको YouTube में मिल जाएगा। वो भी एक नॉन इंडियन लेडी ने गाया है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। ये सब तो हो गए। अभी आयुर्वेद क्या सोचता है ये सब गर्भ संस्कार के बारे में? प्री कंसेप्शन जो है वो गर्भाधान, जिसे आयुर्वेद बीज संस्कार कहता है। द सेकंड वन इज द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहता है, जो पुंसवन संस्कार वो आयुर्वेदा ने भी बताया है। सीमंतनयन संस्कार वो भी बताया है। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ स्थिरीकर संस्कार, ये 3रे महीने में किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, जिसे हम बाल संस्कार भी कहते हैं। जो मैंने पहले 16 संस्कार दिखाए, उसमें से 4 से लेकर 9 संस्कार जो है वो 1 ईयर तक, विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? जो बेबी के माइलस्टोन है जो 1 साल के बीच में बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं, कि जैसे वो अन्नप्राशन करने लगता है, जैसे वो बात करने लगता है, जैसे वो घर से बाहर निकलता है। तो लाइफ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज में एक एक संस्कार हमारे संस्कृति में दिया गया है। और वैसे ही विद इन ये जो 9 संस्कार है, 9 संस्कार विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। इफ पॉसिबल आप अपने कैमरास ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आप मुझे बताओ, तो आप सोए हैं या नहीं है वो भी मुझे पता चल जाएगा। जब एक फार्मर को क्रॉप लेना है, कुछ भी धान्य लगाना है, या फिर आप सपोज आपको एक प्लांट लगाना है घर पे, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? क्या क्या देखेंगे? पॉट, फिर soil, proper soil, fertilizer, water. Okay, water, seed, Then will bring the seed. water, air, Sunlight. wind, Sunlight. sunlight. Okay.
और ग्राउंड, जहाँ पे वो प्रॉपर स्पेस। यस, ग्राउंड। अभी सीड हो गया, ग्राउंड हो गया, सनलाइट हो गया, और क्या चाहिए होगा? इतना होगा पानी। तो बस हो जाएगा। पानी। या इंपॉर्टेंट वन इज द पानी। और किस महीने में कौन सा पौधा फूल देता है या फिर किस महीने में कौन सा लगाना है, दैट वन इज द आल्सो इम्पोर्टेंट। तो पहले आता है ऋतु, कि किस ऋतु में हम लोगों को कौन सा पौधा लगाना है। देन सेकंड आता है क्षेत्र, दैट इज जमीन, अर्थ। उसके बाद आता है पानी, और फिर उसके बाद आता है बीज। ये सब चीजें हैं, ये एक फार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि एक मिनट, यावत जीवे भाव विशेषात तावत लोके, यावत लोके तावत जीवे। मतलब हमारी जो सृष्टि में जो जो है ना, वो सब हमारे शरीर के अंदर भी रहता है। जैसे हमारा शरीर जो है वो एक बड़ी वाली सृष्टि का छोटी सी प्रतिकृति मानी जाती है। कि जैसे अभी आप लोगों को पंचमहाभूतों के हिसाब से अगर आप देखा जाए, तो पंचमहाभूतों से अगर आप रिलेट करेंगे तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप सब योगा टीचर है, इसीलिए मैं पंचमहाभूत नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी पानी, अर्थ पे पानी कितना परसेंट है? 70। या 70%। और हमारे बॉडी में पानी कितना परसेंट है? 70। 70। इसके हिसाब 70। से जो जो सृष्टि में है वो हमारे शरीर के अंदर भी होता है। तो जैसे एक फसल उगाना एक सृजनशीलता है, उसकी सृजनता आती है, वैसे ही एक बच्चे का जन्म देना भी एक सृजनता आती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के जो महर्षि है, आचार्य है, स्पेसिफिकली महर्षि सुश्रुत ने जो धान्य की उत्पत्ति है उसका सामंजस्य जो है वो गर्भाधान से बताया है। कि एक स्त्री को जब गर्भाधान करना है तो उसमें अलग अलग ये चीजें जरूरी हो जाती है, जैसे कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। वो कैसे, वो हम आगे देखने वाले हैं। ऋतु, दो तरीके से हम ये गर्भ उत्पादक भाव इसको आयुर्वेद में बोला गया है। दो तरीके से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज द आइडियल एज। बच्ची को भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती, और ज्यादा अबव 45 की कोई औरत होगी तो उसको भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एज दिया गया है। तो आयुर्वेद ने जो एज दिया है वो मेल के लिए है 25 इयर्स और फीमेल के लिए है 16 इयर्स। उसी हिसाब से मॉडर्न साइंस जो है वो भी आज कहता है कि फीमेल के लिए 20 to 30 इयर्स का जो एज है वो एज सबसे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ फॉलिकल्स है, जो आयुर्वेद से काफी हद तक सिमिलर है। देन मेल के लिए जो एज बताया है वो 20 to 30 इयर्स है, जिसमें मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स अवेलेबल रहते हैं, और सबसे जरूरी जो फॉलिकल्स और पर्म्स रहते हैं उनकी जो क्वालिटी रहती है वो बेस्ट रहती है। इसीलिए जो भी संतति निर्माण होगी वो बेस्ट होगी। सेकंड ऋतु जो है, ऋतु के लिए हम एक दूसरा कंसेप्ट और देख सकते, सॉरी, फर्टिलिटी एज जो है, इसके हिसाब से आप देखेंगे कि अब अराउंड 25 इयर्स तक आपकी जो फर्टिलिटी है वो 25% तक चली जाती है। वही 30 एज तक जो है वो 20% तक चली जाती है। लेकिन एट द एज ऑफ 35 इट इज लेस देन द 15%। इसीलिए अगर लेट एज में हम देखते हैं कि स्टडी हो गया, करियर हो गया, उसके बाद आपका मैरिज होगा और फिर आपका प्रेगनेंसी के बारे में कभी आप सोचेंगे। इसीलिए आजकल जो इनफर्टिलिटी के केसेस है वो इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आप भी ये सोचोगे, आसपास आपके आजू बाजू देखेंगे तो सब बोल रहे हैं कि अरे नहीं, कब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? दैट इज द fertility age is the most important thing. And the second important is हमारा आवर पीरियड। आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से भी आपका जो है वो ऋतु काम करता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से आयुर्वेदा ने 3 पार्ट किए हैं। एक जो पार्ट होता है वो रजस्राव काल,
मतलब जिस वक्त में आपका मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है। द सेकंड वन इज द ऋतुकाल। रजस्राव काल जो रहता है वो 3 to 5 डेज रहता है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है उस वक्त। ऋतुकाल जो है वो 12 to 16 डेज तक रहता है, जिसमें प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छा चांसेस रहते हैं। ऋतुकाल को जो है उस वक्त क्या रहता है, यूटेरस इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। उसका जो एंडोमेट्रियम है वो थिकनेस बहुत अच्छा बढ़ जाता है, तो जो भी गर्भ उसमें आता है वो अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है। जो ओहम मतलब जो बीज निकलता है स्त्री के शरीर से, वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहता है। और वजाइना जो है, वजाइना स्पर्म के लिए अच्छा सा एक पैसेज, जो पीएच रहता है वो पीएच उस वक्त मेंटेन रहता है। जो सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशंस रहते हैं वो ऋतुकाल में सबसे अच्छे रहते हैं। देन ऋतु व्यतीत काल जो 9 to 13 डेज है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो 9 to 13 डेज रहते हैं उसे ऋतु व्यतीत काल कहते हैं। मतलब ऋतु खत्म होने के बाद जो पीरियड आता है वो कहा जाता है। जो फर्स्ट है रजस्राव काल, आप लोगों को पता है कि गर्भाशय जो है अपान वायु के अंडर आता है, जो हमने पंच प्राण पंचवायु जो सीखे हैं उसके हिसाब से। तो रजस्राव का काल जो है वो बाहर डालना, रज, ये किसका कार्य है, अपान वायु का। तो इस क्षेत्र में वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है। ऋतु काल में सबसे जरूरी रहता है वहां पे कफ का प्रकोप रहता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो एकदम से उसमें पित्त का जो प्रकोप है या फिर पित्त जो है वो बढ़ जाता है। और इसी का जो यूज है हमारे बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी के हिसाब से आजकल ओव्यूलेशन किट, जो प्रेगनेंसी किट आते हैं कि कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, ये आजकल ये किट्स जो है वो मार्केट में आ जाती है। तो यहाँ पे इसी का यूज किया जाता है। या फिर आप भी अगर मॉनिटर करोगे पूरा महीना भर, एक सर्टन स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप रेगुलर टेम्परेचर लेते हो तो आफ्टर ओव्यूलेशन 0.8 to 1% आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और इसी को आयुर्वेद ने पित्त काल बोला है। दैट वन इज द मोस्ट, मतलब उस वक्त भी आचार्यों ने वहां तक सोचा था। एज पर मॉडर्न साइंस ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो 12 to 16 डेज ऑफ नॉर्मल साइकिल। एलोपैथी ने भी, सॉरी, जो मॉडर्न साइंस है उन्होंने भी यही बताया है। अगेन लेट्स प्ले अ गेम, उससे आपकी नींद भी भाग जाएगी। कितने अच्छे आम दिख रहे हैं ना। तो चलो बताओ, अगर आम के बारे में हम लोग सोचने लगे तो कौन सा आम याद आता है आप लोगों को? कौन सा नाम याद आता है? अल्फांसो। अल्फेंजो, राइट। अगर फिर मैं बोलूंगी कि अल्फेंजो मैंगो, तो आपको कहाँ का अल्फेंजो मैंगो याद आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रत्नागिरी। स्पेसिफिकेशन रत्नागिरी। और थोड़ा करीब देवगढ़ हापुस, जिसे एक ब्रांड बोला गया है आज। ओके, तो कोकण में तो रत्नागिरी में होता है, अलीबाग में होता है, फिर भी देवगढ़ हापुस का ही ब्रांड क्यों हुआ है? सी, मैंने यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया है कि ये जो ऊपर जो है वो देवगढ़ हापुस है और नीचे जो है रत्नागिरी हापुस है। दोनों ही हापुस है लेकिन क्वालिटी कितनी डिफरेंस हो जाती है। तो ये सब क्यों हो गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉइल क्वालिटी, वाटर इनटेक कैपेसिटी, और जो स्पेसिफिक क्रॉप है, जो स्पेसिफिक आप वहां पे उगाने वाले हैं, उस मिट्टी में जो मिनरल्स रहते हैं वो मिनरल्स उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। कि जैसे अभी नागपुर में संतरी होती है तो वही संतरे अगर हम यहाँ पे मुंबई में आकर संतरे का पेड़ लगाएंगे तो उससे क्वालिटी की संतरी पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्षेत्र जो है, जमीन जो है, वो उसके हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है आयुर्वेद में इसको जो कोरिलेट किया है, इसे गर्भाशय के साथ कोरिलेट किया है। और जो गर्भाशय है वो जो है कैसे रहता है, जैसे मैंने अभी आपको एक पिछली की स्लाइड दिखाई, जस्ट हाँ, आप एक बार ये स्लाइड फिर से देख लो।
कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है। ये जो ओव्यूलेशन पीरियड है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे रेड कलर का एक लाइनिंग तैयार हो गया है, तो इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं या फिर बोलते हैं कि गर्भाशय शैया, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है और वो कैपिलरीज जो भी इम्प्लांट करने वाला फर्टिलाइज ओवम है वो वहां पे आकर इम्प्लांट होता है और उसको जो नरिशमेंट है वो नरिशमेंट भी गर्भाशय के अंदर मिलती है। और उसके हिसाब से जो फर्टिलाइज ओवम है उसके हिसाब से वो इम्प्लांटेशन करने के लिए वहां पे वो जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट की निर्मित करना, ये गर्भाशय का प्रमुख कार्य जिसे हम क्षेत्र कह सकते हैं वो यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है ऋतु हो गया, क्षेत्र हो गया, अम्बु, दैट इज अ वाटर। ये वाटर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाटर है उसका जो रिलेशन किया गया है वो है प्लासेंटा या फिर आप एमनियोटिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे आपने अभी एनाटॉमी सीखी है उसमें भी आपने ये फिटोप्लासेंटल जो सर्कुलेशन है वो आपको पता होगा, इसके लिए मैं उसमें जा नहीं रही हूँ अभी। देन थर्ड वन इज द सबसे जरूरी क्यों होता है अम्बु। अगर ऋतु भी अच्छा है, क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि बीज भी है, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो वो पौधा टिक सकेगा नहीं, वो श्रंक हो जाएगा, फिर उसके बाद वो मर जाता है। तो उसके लिए अगर हम लोगों को स्प्राउट्स निकालने हैं जैसे, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि पानी में थोड़ी देर के लिए उसको भिगा के रखते हैं और फिर उसको किसी कपड़े में लपेट देते हैं। अगर हम ये बीज का स्टेप स्किप कर दे तो उसमें पानी में डाले ही नहीं, सिर्फ कपड़े में लपेट देंगे तो चलेगा क्या? नॉट पॉसिबल, वो स्प्राउटेड नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये जो पानी है वो पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीजें हैं। अगर हम गर्भ का विचार करेंगे तो उसका जो इनटेक है तो वो खुद का इनटेक उसका कुछ भी नहीं रहता है। जो भी माता खाती पीती है, जो भी माता का आहार रहता है, जो भी माता का विहार रहता है, उसका इम्पैक्ट वो गर्भ के ऊपर आता है। जो भी हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं उसका एक इसेंस ऑफ फूड बन जाता है, जिसे आयुर्वेद में रस धातु बोला है। और इस रस धातु से फिर आगे के जो सप्त धातु है उनकी निर्मित होती है। इसीलिए जो माता का आहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माता फिर अपने प्रीवियस लाइफ से क्या क्या लाती है, जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो उसका इम्पैक्ट करता है। डाइट, फूड हैबिट्स और एटीट्यूड्स, इस सब का इम्पैक्ट बेबी के ऊपर होता है। और स्पेसिफिकली जो भी डिफेक्ट आते हैं, बर्थ डिफेक्ट कहते हैं या फिर हम उसको एनोमली कहते हैं, वो अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक वो तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो माता की फूड हैबिट्स से जब तक उसको पता भी नहीं चलता है 10 वीक्स तक, तब तक बेबी के बीच में बर्थ डिफेक्ट्स आना शुरू भी हो जाता है। इसीलिए गर्भावस्था के पहले से माता का जो डाइट और फूड हैबिट है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर माता में न्यूट्रिशन कम होते हैं तो उसके वजह से मदर सफर होती है और इसके साथ साथ बेबी भी सफर होता है। माता का और आहार और एक चीज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं तो हर कोई बोलता है कि हाँ अभी तुम दोनों के लिए खाना है। तो मैं कहती हूँ दोनों के लिए नहीं खाना है। जो भी माता खाती है वो 3 चीजों में डिवाइड होती है, सिर्फ उसके उसके खुद के पोषण के लिए या बेबी के पोषण के लिए नहीं। उसमें उसका तीसरा पार्ट भी होता है जो उसके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जाता है, उसके ब्रेस्ट का न्यूट्रिशन होता है। अगर किसी औरत को आप देखेंगे कि उसके ब्रेस्ट फीडिंग या फिर मिल्क सिक्रेशंस कम हो रहे हैं, अगर आप उसका डाइट हिस्ट्री लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो माल न्यूट्रिशन या फिर उसका जो फूड हैबिट्स थे वो काफी खराब होते हैं। कोई अगर आपके पास आता है तो उसके फूड हैबिट्स अगर आप अच्छे सजेशन दोगे तो
उसका मिल्क सिक्रीशंस भी काफी अच्छे हद तक बढ़ जाता है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पथ्य और अपथ्य। इसमें एक बहुत बेसिक चीज बताती हूँ। पथ्य जो रहते हैं वो रहता है जो चीजें खानी है उसे। बहुत बार हम बोलते हैं कि नहीं यार ये मुझे तो पथ्य है, जैसे डायबिटिक पेशेंट आ गया तो वो बोलता है कि शुगर मुझे पथ्य है। पथ्य है मतलब खाना है, तो हमें बोलना चाहिए कि वो मुझे अपथ्य है। अपथ्य मतलब जो नहीं खाना है उसे हम क्या बोलते हैं, अपथ्य बोलते हैं। तो पथ्य में क्या क्या आता है देखिए आप, फ्रेश वेजिटेबल्स है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट घी है, सात्विक फूड है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। और बहुत सारे जो लिगेम्स है वो उसमें आ जाते हैं। फिर अपथ्य में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सात्विक आया तो यहाँ पे तामसिक भोजन तो आना ही चाहिए। कॉफी आता है, कॉफी इसीलिए अपथ्य बताई गई है कि ये कई बार मिस कैरेज के लिए या फिर हार्मोनल चेंजेस के लिए पॉसिबल हो जाती है। तो कितना कैप कॉफी हम लोगों को लेना चाहिए, तो अराउंड लेस देन 200 mg पर डे, इसके हिसाब से हम कॉफी ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे हाँ हम लोग तो कॉफी लेते ही नहीं है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि चाय और चॉकलेट ये भी कॉफी के सोर्स है। अगर ये चीजें ले रहे हैं तो ये चीजें भी हम लोगों को बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को कि ये चीजें भी कम करनी चाहिए। जंक फूड, उसमें न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं रहता है लेकिन ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, दैट वन आल्सो आपके बेबी के लिए और आपके खुद के पोषण के लिए अच्छा नहीं रहता है। ये जो डाइट है वो बहुत मदर और फादर दोनों के लिए बताया गया है, तो इसीलिए अल्कोहल इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड स्मोकिंग इज द आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। अल्कोहल जो है वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है, तो इसकी वजह से फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स बेबी में डेवलप हो सकते हैं। और अगर मेल बिफोर प्रेगनेंसी कोई मेल अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके स्पर्म काउंट और उसके मोटिलिटी को भी अफेक्ट करता है। चाय का मैंने बताया, ये जो स्पाइसी आता है उसमें भी बहुत सारा स्पाइसी अगर खाते हैं तो आपके अबॉर्शन के लिए एक रीजन हो सकता है। रेडी टू कुक फूड, आजकल बहुत सारे रेडी टू कुक फूड हम लोगों को मिल जाते हैं और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। जब फ्रोजन फ्रूट रहते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं। वो कितने भी बोले कि प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल। आप ही सोचो, अभी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन सोचो लेशियस की कितनी बड़ी एड चल रही है कि अच्छा है प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इज इट पॉसिबल। उनको पता रहता है क्या उनको एक दिन में कितना ऑर्डर आने वाला है और फिर उसके हिसाब से ही वो प्रिपेयर करके रखेंगे। और अगर ऑर्डर नहीं आया तो वो क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि जो उन्होंने जो भी प्रिपेयर किया है वो सब फेंक देते होंगे। उसको कुछ ना कुछ तो उसमें प्रोसेस होता ही होगा ना। और जो वो प्रोसेस है वो केमिकल एजेंट्स के साथ आते हैं जो अपने शरीर के लिए और अपने बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एक रहता है फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड जो है वो जब प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं उसी के साथ हम लोगों को बिफोर 3 मंथ्स मिनिमम फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। ये आप भी एडवाइस कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट को। और ये कब तक चालू रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसको कंटिन्यू रखना है। ये क्या काम करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करके जो एक बर्थ एनोमली आती है वो नहीं होने देता है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज और लो बर्थ वेट बेबी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके आने वाले होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड के जो सोर्सेस होते हैं वो है एग, लीफी वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, चिकपीज, किडनी बीन्स, ब्रोकोली और लिवर। लेकिन लिवर जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, इट इज अ हार्मफुल। ओके, ये सब। और स्प्राउटेड, स्प्राउटेड एक भी बहुत अच्छा फॉलिक एसिड का सोर्स है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आपको स्प्राउटेड खाने हैं, जिस लोगों को वात की तकलीफ रहती है उन लोगों को जो स्प्राउटेड है वो मिनिमम स्टीम तो भी कर लेने चाहिए। अगर वो विदाउट प्रोसेस स्प्राउटेड खाते हैं तो उससे वात बढ़ जाता है और आपको बाकी जो वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बॉडी में
बढ़ जाती है। आहार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, फीमेल जो है उसमें अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने बोला है कि तेल और गुड़ उसमें लेना है। ऑयल और गुड़ आपको पता है, माश जिसे हम उड़ीद बोल सकते हैं, और पित्तकर फूड और कड़। ऐसा क्यों लेना है हमें? जो तेल है, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे ही ऋतु काल जो रहता है वो पित्त धर्मी हो जाता है, तो तेल जो है वो अग्नेय गुणधर्म का होता है, और जो योनि मतलब वजाइना जो है उसको क्लीनिंग करने में तेल बहुत अच्छा काम करता है। और जो मांस रहते हैं वो उष्ण वीर्य के होते हैं, उसकी जो क्वालिटी, अगर किसी को स्कैंटी मेंसेस है तो आप उसको भी ये एडवाइस कर सकते हैं, तो उसकी जो मेंसेस है वो मेंसेस बहुत अच्छे से आने लगते हैं। मेल के लिए बताया है घृत और मधुरगंध सिद्ध मिल्क और राइस। क्यों बताया है? घृत जो है वो पित्तहर रहता है, अनिल हरम अग्निदीप्तम रहता है, जैसे कि हमारे शरीर में अच्छे से अग्नि बढ़ाने का काम करता है। और जो शुक्र ओजस जो मतलब स्पर्म्स रहते हैं उसके लिए बेनिफिशियल काम करता है, इसीलिए शुक्र करते हैं। मेडिकेटेड मिल्क जिसके बोला गया है वो प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ शुक्र धातु, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ जो ऑफ स्पर्म्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सात्विक फूड, आप सब योगा टीचर है, सात्विक फूड के बारे में तो मैं कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट कर देती हूँ। जो रॉ मटेरियल है वो फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसको घी उस पे डालना चाहिए, सबसे जरूरी वो आपके शरीर का ड्राइनेस कम करके, बहुत सारे रसायन बोला गया है घी को, तो उसके हिसाब से वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। जब आप खाना खाते हैं तो फोन पे बात करना या फिर घर वालों से भी जो बातें होती है वो नहीं करनी चाहिए। गॉसिप्स या जो निगेटिव कमेंट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जो कुछ आप टीवी मोबाइल पे देख रहे हैं या फिर कुछ वायलेंट सीन्स देख रहे हैं तो वो नहीं करने चाहिए। आपको शांति से एक जगह बैठकर आराम से खाना चाहिए। और किनके साथ खाना चाहिए कि जो लोग आपको प्यार करते हैं या फिर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनके साथ, मतलब अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम लोगों को खाना चाहिए। और खाना जो हमें प्यार करता है उन्होंने उनके हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। जैसे हर किसी को फेवरेट रहती है कि मेरे माँ के हाथ का ये, मेरे माँ के हाथ का वो, हम लोगों को उसको एक इमोशनल टच रहता है। मतलब हमारी सिस्टर भी बना लेती है या फिर हमारा भाई भी बना लेता है या फिर हमारे लिए और कोई भी कुक कर लेता है, फिर भी हम लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार, माँ के हाथ के जैसा स्वाद नहीं आया। और हर किसी का माँ के हाथ का, एक की माँ का हाथ का नहीं है। अगर किसी ने राजमा चावल भी बना लिए तो हर एक की माँ का स्वाद अलग होगा, तो फिर भी वो उसका हर किसी का फेवरेट होता है। बिकॉज वो जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है उस व्यक्ति के साथ, दैट वन इज द इम्पोर्टेंट वन। वो भी हमारे सात्विक फूड के लिए इम्पोर्टेंट तत्व हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है 3/4 क्वांटिटी ऑफ स्टमक, इतना ही फूड एक टाइम में लेना चाहिए, दैट वन इज द सात्विक आहार। अगर हमने बैड डाइट लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्री मैच्योर बर्थ, मतलब बर्थ जो 9 मंथ का 9 मंथ 9 डेज 40 वीक्स का जो कालावधि है वो कंप्लीट करे बिना ही पहले बर्थ डिलीवरी हो जाना, विद इन 38 वीक्स के पहले जो डिलीवरी होती है उसे प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। उसके साथ ही बेबी का जो वेट है अराउंड इंडियन बेबी का जो वेट है 2.5 to 3 इज अ नॉर्मल। उसके नीचे अगर वेट चला जाता है तो उसको लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर लो बर्थ वेट रहता है तो इन लोगों को इनेबिलिटी टू फीडिंग, तो अच्छे से फीड भी नहीं ले पाते हैं। फिर उसके ये जो लो बर्थ वेट के बेबी है उनका माइलस्टोन्स, मतलब वो बैठने कब लगा, वो खड़ा कब होने लगा, ये जो माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन बोलने कब लगा, वो माइलस्टोन भी लेट आने लगते हैं। और एडीएचडी जिसमें अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब जो बच्चे अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, स्कूल वर्क में उनको प्रॉब्लम आता है, हाइपर एक्टिव रहते हैं, एक जगह पे ठीक से बैठते नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ये माता के बैड डाइट की वजह से आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एट बर्थ,
डिप्रेशन, माँ को जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, अगर उसका डाइट अच्छे से नहीं होता है, वो उसको रिकवर भी जल्दी से नहीं कर पाती है. वीक इम्यूनिटी ऑफ द बेबी एंड पोस्टपार्टम रिकवरी also hampered because of bad diet. ऋतु, क्षेत्र, अंबो और बीज. बीज के बारे में बोला जाता है, जो आयुर्वेद के हिसाब से है, मैंने पहले ही बोला था, शुद्ध, शुक्र और आर्तव, इसे आयुर्वेद ने बीज माना है. और मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो हेल्दी स्पर्म एंड ओहम, ये जो है वो उसको बीज के अंदर लाया गया है. तो आए देखते हैं, ये जो श्लोक है बीज के बारे में बताया गया कि गर्भधारणा से पहले जो बीज रहता है, जो सीड की क्वालिटी रहती है, वो क्वालिटी कैसे होनी चाहिए. अभी आप देखेंगे कि मैंने अगर खट्टे आम से पौधा तैयार किया और वो पौधा लगाया, तो आपको आम कैसे मिलेंगे? नेचुरली खट्टे ही मिलने वाले हैं, उससे मीठे आम कैसे पॉसिबल है? उसी के हिसाब से अगर आपका बीज अच्छे क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, उसकी इम्यूनिटी, माँ और पिता की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वो बीज में भी वो क्वालिटीज आने लगती हैं. तो ये जो है उसको, उसके बारे में आयुर्वेद ने कहा है, शुद्ध शुक्रार्तवे सत्वः स्वकर्म क्लेश चोदितः गर्भः संपद्यते युक्ति विषाद अग्निर्वारणौ. वाग्भट शास्त्र स्थान का ये श्लोक है. शुद्ध, इसका पहला वर्ड है शुद्ध शुक्रार्तव, मतलब प्रेगनेंसी के लिए जो भी शुक्र और आर्तव है वो प्योर होने चाहिए, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसमें वो होने चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, तो जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा. फिर उसके बाद उन्होंने जो क्राइटेरिया लगाया है वो है सत्व. सत्व, सत्व कारणो गुण ग्रहणाय प्रवर्तिते. अगर आपका सत्व अच्छा रहता है तो आप गुणों का ग्रहण अच्छे से कर सकते हैं, मतलब संस्कार उसमें अच्छे से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने व्हाइट, आपको किसी कपड़े पे कलर चढ़ाना है, रंग देना है उसको, तो आप कैसा कपड़ा लेंगे? एक व्हाइट कपड़ा लेंगे जो अच्छा है, नया है. उसके ऊपर अगर आप रंग चढ़ाते हैं तो वो अच्छे से रंग चढ़ जाता है. वही अगर आप मैला कपड़ा लेते हो तो उस पर रंग चढ़ेगा क्या? और चढ़ भी गया तो वो कितना खराब लगता है, वो अच्छा दिखेगा क्या? नहीं. सेम हमारे मन का भी है, हमारा चित्त का भी. हमारा चित्त की अगर शुद्धि रहती है तो जो भी संस्कार हम करते हैं वो संस्कार बहुत अच्छे से हो जाते हैं. कि जैसे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार करना बहुत इजी हो जाता है, उनको गुड हैबिट्स लगाना बहुत इजी हो जाता है. कि जैसे हम उनको बोलेंगे हाँ कि रोज रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है, तो उनको वो हैबिट जल्दी से लग जाएगी. लेकिन कोई जो है, जो ना बेड जाने से, सॉरी, रात को ब्रशिंग नहीं कर रहा है, तो उसके बड़े आदमी को अगर हम बोले तो उसको वो आदत लगने में बहुत टाइम लग जाएगा. बिकॉज ऑफ बच्चों का जो मन रहता है, जो सत्व रहता है, वो प्योर रहता है. इसकी वजह से चित्त इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्लेश चोदितः, मतलब इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्लेशास. अभी आयुर्वेद में तो कहीं पे भी क्लेश का वर्णन नहीं किया है, लेकिन वाग्भट को पता है, वहां पे पतंजलि योग सूत्र थे, उनको पता था कि हाँ, ये जब वाग्भट संहिता लिखी गई तो उनको पता था कि हाँ, सब लोगों को पता है कि क्लेश क्या है, इसलिए मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए वहां पे उन्होंने सिर्फ क्लेश का वर्णन कर दिया. तो जो पंच क्लेश है वो हमें पतंजलि योग सूत्र से मिलते हैं. एज अ योगा टीचर, all of you knows अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः. जिस तरीके से हम लोग आज की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हर कोई इन क्लेशों से लिप्त रहे. और आपको पता है कि पतंजलि महर्षि ने इसके लिए उपाय भी दिए हैं. तनु करणार्थ, क्लेश तनु करणार्थ क्या क्या दिए हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग. ये जो क्रिया योग है उसकी मदद से हम तप, जो क्लेश है वो कम कर सकते हैं. आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका रिवीजन करना चाहूंगी. तब जो है अनादि कर्म क्लेश वासना जो है वो नष्ट करने के लिए तब जरूरी रहता है. तब
के लिए बहुत अच्छे से लिखा गया है, कायेंद्रिय शुद्धि सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः। मतलब काया शरीर और इंद्रिय, इन दोनों की सिद्धि होना, अशुद्धि का क्षय होना, दैट इज द तमस गुण जो बढ़ गया है शरीर के अंदर, उसका क्षय होना, इसे तप कहा गया है। अभी आप स्लाइड पे देख रहे होंगे तो आपको आगे मैंने डैश करके लिखा है प्राणायाम। तप में प्राणायाम भी आता है, आपको पता है तप में प्राणायाम आता है एज ए योगा टीचर? आपने कहीं पढ़ा है क्या? आंसर एवरीवन। नहीं पढ़ा। एक बार आप सब कैमरा ऑन करेंगे क्या? मुझे लगेगा कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। नहीं पढ़ा है कहीं भी। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि तप के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने नहीं कहा है, लेकिन जो प्राणायाम का जो श्लोक दिया गया है, ततश्यते प्रकाश आवरण, उसकी जो व्यास टीका लिखे है, उसमें टीका लिखते वक्त महर्षि व्यास बोलते हैं, तपोन परम प्राणायाम ततो विशुद्धिर मलादीनाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य इति। मतलब जो प्राणायाम है वो सबसे श्रेष्ठ तप है। वो क्या करता है, जो मल जो है, तमस या आदि जो मल है, उन मलों को विशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध करता है और ज्ञान को प्रदीप्त करता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने तप के साथ प्राणायाम भी लिया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय आप लोगों को पता है, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, प्रणव जप और पवित्र मंत्र का जप। इसका वर्णन महर्षि व्यास ने फिर टीका लिखते वक्त स्वाध्याय में किया है। इसमें आप मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि किसी को फिर माइथोलॉजिकल बुक्स जो है वो पढ़ने अच्छे नहीं लगते, तो मिनिमम आप उनको कुछ गुड बुक्स, जो गुड हैबिट्स पेरेंटिंग के या फिर गर्भ संस्कार के ऊपर है, वो भी आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। एंड ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, इसमें जप भी आता है, जो महर्षि पतंजलि ने खुद ने लिखा है। ईश्वर प्रणिधान जो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तद जप तदर्थ भावनम, मतलब ईश्वर प्रणिधान करने के लिए अगर आपको करना है तो जप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे क्लेश कैसे कम होते हैं? तनु करनार्थ बोल तो दिया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करना है। तो अभी आप देखो कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, घर का सब काम मैं ही करती रहती हूँ, बच्चों को मैं ही पढ़ाती रहती हूँ, ये क्या हो गया? मैंने फैमिली के लिए ये किया, मैंने वो किया, तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो अस्मिता है, ओके, ईगो है अपना। उसके बाद मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, ये मेरा है, ये उसका है। ये मेरा है जब आता है तो ये तो अनित्य वस्तु हो जाती है, तो उसके प्रति जो प्रेम होता है तो वो किस में आ जाता है? अविद्या और राग में आ जाता है। उसके बाद आता है, मैंने उसे ये मिला, मुझे ये नहीं मिला है, मैंने ये नहीं, उसको ही सब मिलता है, हमेशा आप लोग उसको ही ये करते हैं, उसके पास इतना है, एक बड़ा घर है, गाड़ी है, वॉट एवर इट मे बी। तो ये क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। अगर आप तप जो प्राणायाम से भी जुड़ा है, तो वो आप माइंड पे कंट्रोल करते हैं, आप विचारों पे कंट्रोल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपको गॉसिपिंग टाइम जो है वो कम रहता है, आप समझने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, अगर आप सरेंडर टू गॉड करते हैं कि जैसे जो कर रहा है वो भगवान की इच्छा थी तो मैंने वो कर दिया, जो किया है वो भगवान ने किया है। जैसे गीता में बताया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो वो कैसे है कि जो किया वो भगवान ने किया है, और मुझे जो भी मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि प्रसाद में हम लोगों को क्या मिलता है? चने भी मिलते हैं तो हम खुश होते हैं, और मोतीचूर का लड्डू भी मिलता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। वो हम उसी श्रद्धा से खाते हैं। तो ये जो श्रद्धा है, चने में भी वो श्रद्धा है और मोतीचूर के लड्डू में भी वही उतनी ही श्रद्धा रहते हैं। तो वो क्या है, जब हम प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं तो वो क्या रहता है? एक्सेप्टेंस रहता है।
अगर आप ये एक्सेप्टेंस आपका बढ़ जाता है तो आपके जो क्लेश है वो क्लेश कम होने लगते हैं। और फिर इसके बाद ध्यान का भी उन्होंने उल्लेख किया है पतंजलि महर्षि ने। जो ध्यान जो है वो जो क्लेश की स्थूल वृत्ति रहती है, ध्यान है या तदवृत्तयः, जो क्लेश की वृत्ति रहती है, जो स्थूल वृत्ति है, वो हम ध्यान करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सत्व स्वकर्म क्लेश चोदितः, इतना सब बीज के अंदर आयुर्वेद और योगा के हिसाब से इस श्लोक को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है सौमनस्य। ये जो सौमनस्य है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आयुर्वेद और योग शास्त्र में भी इसका वर्णन किया है। जो चरक महर्षि है उन्होंने क्या किया है ना, सब चीजों के लिए एक बेस्ट चीज बताइए, एक ही बेस्ट चीज। जैसे दुग्ध जीवनीयाना, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे भी हम दूध दे सकते हैं, और जो ओल्ड एज के लोग रहते हैं उनको भी दूध अच्छा रहता है। अगर कुछ भी नहीं लेते तो वो सिर्फ दूध लेके भी रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो वो एक उसमें बड़ा मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गई, उसे अग्र संग्रह बोला है। तो उसी में बोला गया है कि सौमनस्य गर्भ कराना, मतलब जिन लोगों को प्रेगनेंसी रहने में पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उन लोगों को सौमनस्य बहुत जरूरी है। दैट इज द Euphoria is the best aid for the achieving good pregnancy. Euphoria means the extremely happiness. अगर आपके पास रहता है तो आपको प्रेगनेंसी रहने में बहुत अच्छा होता है। सौमनस्य का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में भी आया है, किसी को याद है? सेकंड चैप्टर में। ओके, पतंजलि योग सूत्र दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 41 जो शौच के बारे में आया है। पहले उन्होंने बाह्य शौच के फायदे बताए हैं, फिर उन्होंने अभ्यंतर शौच के बारे में जो बताया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जया, एकाग्र इंद्रिय जया आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। जो इंटरनल शौच अगर हम पालन करते हैं या फिर इंटरनल शौच की स्थिरता, स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है तो हम लोगों को क्या क्या मिलता है? ड्यू टू द इंटरनल प्यूरिटी, सत्व शुद्धि मीन्स प्योर माइंड हम लोगों को मिलता है। सौमनस्य, दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, मतलब एक नेचर जो रहता है वो व्यक्ति का, हर व्यक्ति का चेयरफुल रह जाता है। फिर उसके बाद आता है एकाग्र, चित्त की स्थिरता। चित्त की 5 भूमियां आपको याद होगी, उसमें से एकाग्र पता है जिसमें सत्व गुण जो है उसका अधिक्य हो जाता है, तो वो भी शौच के पालन से यहाँ पे एकाग्र हम लोगों को मिल सकती है। इंद्रिय जयत्व, मतलब हम हमारे माइंड के द्वारा हमारे सेंसेस के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। और ये सब प्राप्त होने के बाद आपकी जो योग्यता होती है वो कैसे होती है? आत्मदर्शन, मतलब जो सेल्फ नॉलेज है वो सेल्फ नॉलेज के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। ये जो है वो शौच के अंदर आता है, जो सौमनस्य के अंदर आता है। इसके बारे में मैं और बात करना चाहूंगी कि जैसे दोनों भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनफर्टिलिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कि जैसे अभी ये हो गया, सॉरी, स्टडी हो गया, फिर उसके बाद उसका करियर, फिर उसका मैरिज, और फिर अगर अरेंज मैरिज रहता है तो हम लोगों को एक दूसरे को जानना है, लव मैरिज है तो करियर के लिए कुछ टाइम देना है। अराउंड 25-28 तक तो चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों से हमें गुड न्यूज मिलने, मतलब कपल को गुड न्यूज मिलने लगते हैं, और फिर वो लोग रिलेटिव्स का स्ट्रेस आने लगता है। 1-2 साल, महीने, साल के बाद वो पूछना शुरू करते थे कि कब दे रहे हो गुड न्यूज, कब दे रहे हो गुड न्यूज। इस वक्त क्या होता है कि कपल जो है वो पूरा स्ट्रेस हो जाता है। दिन भर कंपनीज में काम करना, हेड वर्कलोड रहता है, मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रहता है वो प्रेम रह सकता है? नहीं। तो उनका जो सहवास रहता है वो इमोशनल एक्ट से ज्यादा उन लोगों को एक मैकेनिकल एक्ट हो जाता है।
और इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। या फिर अगर उस वक्त सिर्फ यही सोचना है कि नहीं प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए, नहीं प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, फिर उस पे गायनेक के पास जाके फिर उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया, हाँ ये फर्टिलिटी पीरियड है 12 to 16 तक आपको अल्टरनेट डे क्वार्टर्स रखना है, तो उस वक्त भी उन लोगों को टेंशन आता है कि नहीं इस दिन में रखना ही, एक प्रेशर आ जाता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है वो एक। तो उस वक्त जो उनकी माइंड की कंडीशन होती है वो और भी स्ट्रेसफुल और भी नर्वस हो जाते हैं। तो इस वक्त जो सामंजस्य है, जो हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस दोनों के बीच में रहता है। और हमें ये बच्चा क्यों चाहिए, इनका अगर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है तो प्रेगनेंसी रहने में बहुत अच्छे से आसानी हो सकती है। अवॉइडिंग नेगेटिव इमोशंस लाइक क्रोध, शोक, भय, द्वेष, ये भी हम लोगों को अवॉइड करने के लिए बोला है। और इसके लिए पतंजलि जी ने ऑलरेडी हम लोगों को उपाय दे के रखा है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अगर एक फैमिली पर्सन जो गृहिणी है वो भी, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कोई भी स्त्री भी होगी, अगर वो इस 4 चीजों को एक्सेप्ट कर लेगी कि किसके साथ किसका बिहेवियर रखना है, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकती है। या फिर किसी का जो इम्पैक्ट रहता है हमारे बॉडी में, आज उसने ये पॉलिटिक्स किया, वो पॉलिटिक्स किया, तो उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो इम्पैक्ट वो खुद के ऊपर नहीं पड़ने देगी। सॉरी। और अगर आपको ये सब नहीं हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि गुड म्यूजिक सुनना, अच्छे से छोटी छोटी स्टोरीज सुनना, या फिर आप कुछ अच्छे से बुक पढ़ना, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है जिसके लिए हमने ये सब किया है, बीज शुद्धि। बीज की शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस बीज शुद्धि में क्या क्या आता है, 2 चीजें आती है, एक होती है शारीरिक शुद्धि और एक होती है मानस शुद्धि। आप लोगों को पंचकर्म क्या होता है पता है क्या? अगर पता है तो मैं नहीं बताती हूँ, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लीज आंसर एवरीवन। हाँ थोड़ा शॉर्ट पे बता दो ना। मैम पता है बट रिलेटेड टू Yeah. दिस Please प्रेगनेंसी explain. देखो हम लोगों ने बहुत सारे संहिता पढ़ी या ग्रंथ पढ़ा है, किसी भी ग्रंथ का एक उद्देश्य रहता है। वैसे आयुर्वेद का भी एक उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य का रक्षण करना है, और जो आतुर मतलब जो डिसीज्ड पर्सन है उसके व्याधि का परिमोक्षण करना है, मतलब उसका नष्ट करना है। इसीलिए आयुर्वेद का वर्णन किया है। इसके अंदर स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बताया गया है, दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, और पंचकर्म भी बताए गए हैं। पंचकर्म डिसीज पर्सन के लिए नहीं बताए गए, पंचकर्म हेल्दी पर्सन के लिए बताए गए हैं। और अगर डिसीज भी होते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप उसको ये करना है। पंचकर्म का एक शॉर्ट में अगर हम बोले ना तो एक सर्विसिंग, हम गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करते हैं, गाड़ी अच्छे से माइलेज दे और ज्यादा दिनों तक सर्विस में हमारे रहे, इसीलिए। तो अगर हम गाड़ी की इतना चिंता करते तो हमारे शरीर को सर्विसिंग की जरूरत नहीं है क्या? यस, हमारे शरीर को भी सर्विसिंग की, क्लीनिंग की जरूरत है। इसीलिए पंचकर्म जो है वो शरीर की सर्विसिंग का काम करते हैं। इसमें पंचकर्म जो 5 रहते हैं इसलिए उसको पंचकर्म कहा जाता है। उसमें आता है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। ये मेन 5 कर्म है, और इसके अलावा जो बाकी है उसको उप पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म में पहले जो है वो वमन और विरेचन देते वक्त उसको स्नेहपान देता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 5, 8 डेज अकॉर्डिंग टू योर अग्नि और बल, इसके हिसाब से 30, 50, 80 ml तक स्नेहपान, मतलब मेडिकेटेड घी, आपके प्रकृति के अनुसार या फिर आपके डिसीज के अनुसार वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। फिर ये अभ्यंतर स्नेहपान हो गया। बाह्य स्नेहन मतलब मसाज किया जाता है। ये क्यों करना है कि हमारे शरीर के अंदर जो दोष रहते हैं वो दोष कहीं पे मतलब उसको स्टिक नहीं होने चाहिए, वो सीधे हमारे स्टमक में आने चाहिए। इसकी वजह से ये स्नेहन और स्वेदन, स्वेदन जो रहता है वो मसाज के बाद स्टीम रहती है, उसे भी हम स्वेदन कहते हैं।
फिर आते हैं हम वमन के ऊपर। वमन जो है, जिन लोगों की कफ प्रकृति रहती है या फिर कफ डिसीज रहते हैं, जैसे कि पीसीओडी हो गया या फिर स्कैंटीमेंसेस है, उन लोगों को वमन देने के लिए बोला है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिन लोगों ने वमन किया है और फिर उनको प्रेगनेंसी रहती है, तो उन लोगों को, मतलब अभी देखो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी उनकी डिलीवरी हो गई, वहां पे उनको हाइपर एमिसिस का बहुत ज्यादा कंटिन्यू अप टू 9 मंथ तक भी वोमिटिंग होती रहती है, या फिर 3 मंथ्स भी बहुत वोमिटिंग होती है। अगर इन लोगों ने बिफोर प्रेगनेंसी वमन कर लिया तो उनको हाइपर एमिसिस का जो प्रॉब्लम है ना, वो भी कम हो जाता है। ओके। फिर आता है विरेचन। इसमें पर्गेटिव्स दिया जाता है, लूज मोशंस होते हैं इसमें। ये पित्त जिनकी प्रकृति रहती है उनके लिए, या फिर स्किन डिसीजेस के लिए, या फिर हैवी मेंसेस जिनको है उनके लिए भी विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। एसिडिटी के लिए विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। आपको पता है कि एसिडिटी भी कभी कभी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकती है, कि जैसे अभी आप देखेंगे कि जिसकी वजह से पीएच जो है, एसिडिक पीएच जो है, वो अल्कलाइन पीएच हो जाता है। तो एक पेशेंट को मैंने कन्विंस करते वक्त उसका बोला था कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, तो उसको मैंने बोला कि हाँ, पीएच जो है ना आपका जो अल्कलाइन है, तो वो एसिडिक हो जाएगा और वजाइना का और प्रेगनेंसी रहने में आसान हो जाएगी। तो लिटरली वो पेशेंट ने, जब मैंने विरेचन कंप्लीट किया, तो फिर उसके बाद जब वो पेशेंट आई तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैम, मैंने वजाइनल पीएच चेक किया था, उसका जो एसिडिक पीएच था आफ्टर विरेचन, वो अल्कलाइन पीएच था, वो एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो गया और उसको प्रेगनेंसी रहने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पंचकर्मा। बस्ती जो यूटेरस या फिर लोअर एब्डोमेन पे काम करती है, ये वात को बैलेंस करने का काम करती है, स्पेसिफिकली अपान वायु पे कार्य करती है। तो ये क्या करते हैं, रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम द पेल्विक रीजन, इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक ऑर्गन्स। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आफ्टर बस्ती मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है, उन लोगों को हम लोग ओव्यूलेशन स्टडी देते हैं। तो ये जो स्टडी में जिनका जो ओहम की साइज रहती है, वो हेल्दी साइज है अराउंड 18 to 20 mm तक। तो इन लोगों की जिनकी साइज 12 to 14 mm तक रहते हैं, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आफ्टर बस्ती 3 to 4 मंथ तक उनकी साइज विदाउट एनी मेडिसिन हेल्दी साइज उन लोगों को मिलती है। क्यों हो सकता है ये? एक तो ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म हो जाते हैं, दूसरा उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलता है, तो हेल्दी ग्रोथ भी उसमें हो जाती है। थर्ड वन इज द एंडोमेट्रियल थिकनेस। जो बहुत कम एंडोमेट्रियल थिकनेस होता है, तो अगर गर्भ रह भी जाता है तो एबॉर्शन होने के चांसेस, क्योंकि इम्प्लांट अच्छा नहीं होता है। मतलब हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपने पॉट में बहुत ही कम सॉइल डाला है और उसमें कोई पौधा लगा दिया है, तो वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से जब एंडोमेट्रियम अच्छा होगा, तो वहां पे जो ओहम या फिर जो हम गर्भ बोलते हैं, वो अच्छे से वहां पे इम्प्लांट होता है, और फिर उसके वजह से प्रेगनेंसी हेल्दी रहने में मदद होती है। तो जो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस जिन लोगों को कम रहती है, उन लोगों को भी बस्ती से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नस्य, इसमें मेडिकेटेड ऑयल जो रहता है वो नाक नेजल कैविटी में डाला जाता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब अगर आपके जो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नेजल के हिसाब से उस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है नस्य चिकित्सा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है और दोषों को भी बैलेंस करती है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे यूटेरस दिखाया है मैंने, वहां पे एक इंजेक्टेबल अंदर जा रहा है। तो ये है उत्तर बस्ती, जो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, ये मेल और फीमेल ये दोनों के लिए ये पंचकर्म करवाना जरूरी है। तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी में जो मेडिकेटेड घी या ऑयल एज पर योर प्रकृति और डिसीज, इसके हिसाब से पुश किया जाता है यूटेरस के अंदर। इससे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस रिमूव हो जाते हैं। इट गिव्स द गुड स्ट्रेंथ टू यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। एंड द लास्ट वन इज द शिरोधारा। शिरोधारा जो है, जो स्ट्रेस पर्सन या फिर हम बोलेंगे कि
ए टाइप पर्सनैलिटी की जो लेडीज है जिनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए शिरोधारा बहुत ही अच्छा काम करती है। ये सब जो है वो शारीरिक शुद्धि में आता है, जिसमें आपका क्षेत्र जो है वो क्षेत्र भी कवर हो जाता है, मतलब क्षेत्र की भी शुद्धि हो जाती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी रेगुलाइज होने लगती है, तो ऋतु की भी शुद्धि हो जाती है, और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपका अच्छा होने लगता है। दैट वन इज द अंबु की भी शुद्धि हो जाती है। तो ये जो शरीर शुद्धि और पंचकर्म है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं मानस शुद्धि, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन हो गए। प्राणायाम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनने वाले हैं। ओंकार जप आ जाता है, और मेडिटेशन के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ये सब जो है वो बीज शुद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। अभी शारीर शुद्धि और मानस शुद्धि जब हो जाएगी तो जो बीज होगा वो कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उससे जो गर्भ निर्माण होगा वो गर्भ भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। और जो हमने पहले गर्भ संस्कार के बारे में जो बेनिफिट्स टू द बेबी देखे थे, वो सब बेबी के लिए हमें मिलने में आसानी होती है। अगर स्ट्रेस रहता है तो क्या क्या होते हैं? एबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज हो सकता है, प्रीटर्म लेबर के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन उसमें बढ़ सकता है, एक्लाम्शिया जो हाइपरटेंशन के वजह से आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आता है, बिहेवियर इश्यूज इन बेबी शुरू हो जाते हैं, IUGR मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसकी वजह से बेबी के जो डेवलपमेंट रहती है, सिर्फ वेट कम नहीं रहता है, ऑल ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट मतलब कम होने लगती है। दैट इज द इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटायरमेंट। तो ग्रोथ है वो वहां पे स्टक हो जाती है। और द लास्ट वन इज द लोअर इम्यूनिटी टू द मदर एंड बेबी। ये सब जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। इसीलिए बीज शुद्धि और शरीर शुद्धि जो है वो एक गर्भ संस्कार के लिए, जब आप योगा क्लास लेते हैं तब आपको ये सब चीजें क्यों चाहिए? सी ये सब मैंने यहाँ पे क्यों बताया है, जब आप रेगुलर योगा क्लासेस लेते हैं और एक एंटीनेटल केयर में जब आप योगा क्लासेस लेते हैं वो बहुत अलग चीज है। रेगुलर योगा क्लासेस में आपके स्टूडेंट आएंगे, योगा करके चले जाएंगे, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं ना वो इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज्यादा जुड़ जाती है। अगर उनके गायनेक ने भी कुछ भी बोला ना तो वो आपको आके क्रॉस चेक करेंगे। उनके फैमिली में सास ससुर ने कुछ बोला होगा या फिर माँ ने कुछ भी बोला होगा ना, तो वो आपसे आके क्रॉस चेक करते रहते हैं कि हाँ ये बताया मैम, मुझे वो बताया, तो मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। अगर आप क्लास शुरू करेंगे आगे जाके या फिर आप ले रहे हैं तो इसमें आपने ये चीजें फेस की होगी। इसीलिए जो गर्भ संस्कार है, अगर आप पहले से इतना सब जानते होगे तो आप उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। और अगर आपका एज है तो आप ये खुद के लिए भी अप्लाइड करके एक अच्छे संतान को, एक अच्छे नागरिक को जन्म दे सकते हैं। हम आज का जो लेक्चर है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम योगा और फिटल डेवलपमेंट मंथ वाइज रेजिमेन, मंथ वाइज जो है आयुर्वेद के हिसाब से, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू। आई होप एवरीवन लाइक दिस लेक्चर, या आपको ये यूजफुल होगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर मित्तल, इतना अच्छा आपने कोरिलेशन करवाया। थैंक यू मैम। बहुत बहुत ही बढ़िया था। आई डोंट नो मतलब सबको इतना कितना रिलेट कर पाए सब लोग विद द पतंजलि योग सूत्र एंड टर्किंग आउट दीज सूत्रास कहाँ से आपने निकाले। इवन आई एम अमेज्ड। थैंक यू। ओके, ये जो है मैम वो सब जो है स्क्रिप्चर से है मैम, इदम नवम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। No, but then the correlation what you of scriptures. yeah. Even I have read Ayurveda, but then अभी आपने जो इसको correlate किया ना, वो बहुत ही beautiful किया. The way you related it with Patanjali and this Ayurveda shlokas, बहुत अच्छा लगा. So beautiful. I mean, I always say that कि Ayurveda and yoga they are sister sciences, ये सब. But here you have actually showed it.
So this is beautiful, and that surgical strike का concept I really liked it. यस मैम, वो बहुत सारा रहते हैं, बहुत सारे मैंने कपल्स ऐसे देखे हैं कि उनको वो प्रॉब्लम होता रहता है, तो मैंने उन लोगों को बता दिया कि हाँ, आप लोग है ना पूरा मंथ आप क्वार्टर्स कर सकते हो अल्टरनेट डे, वो फिर फ्री हो जाते हैं और फिर डिले मतलब प्रेगनेंसी रहने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है I उसमें। know, I know, ये but चीजें you know, मतलब देखी है तो वो एक्सपीरियंस की है, तो उसके हिसाब से मैंने वो ये किया है। very true, very true. And a lack of emotions and just a mechanical act, that is actually, you know, something. You said it very truly. You know, you're handling infertility cases and all. So yeah, this very and IUGR ये सब cases कुछ हमें भी दिख क्वेश्चंस रहे हैं. पूछने हैं तो मैम क्वेश्चंस। Yes, yes. Anyone wants to ask anything, please come ahead. So we have Dr. Mittal here. I hope everyone understood. या कुछ नहीं समझा तो वो भी आप पूछ सकते हैं. नहीं, मीतल मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीजें थी कि जब मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने इतना नहीं सोचा था, कितना कुछ कुछ होता है, इतना कुछ क्यों करना है, जैसे कि बेबी शावर क्यों करना है, ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन सब बोलते थे कि हाँ करना है तो हमने कर लिया था। लेकिन अभी उसका साइंटिफिक रीजन भी पता चल गया, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर मीतल, गुड जॉब। थैंक यू। जब क्वेश्चंस नहीं आते ना तो दो चीजें मन में आती है, एक तो पूरा समझ गए आप लोग इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या फिर सब ऊपर से चला गया इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आपके बारे में क्या हुआ है? नहीं मैम, समझ बहुत में अच्छा आ गया। लगा। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। एक चीज सब- मुझे पूछना था। हेलो हाँ डॉक्टर जी, मीतल, बोलिए. आहार में जो आपने बताया था फीमेल के आहार में, वो मैश MASH Mash, माश, it is mash. व्हाट इज उड़द. दैट? वो उड़द दाल को माश बोलते हैं? Yes, Mittal है ना? Hello. उन्होंने वैसे ही बोला था कि उड़द दाल को मैश करके बनाना Yes, urad. I mean the whole urad actually. है। Yes. ओके, It's not the split गंटूर भी बोलते हैं dal. ना उसको। That I don't know. Local language कहाँ साउथ का है वो? हाँ, साउथ में उसको गंटूर करके बुलाते हैं। Okay. I don't know. अच्छा, सो शी मेंट उड़द दाल, द होल उड़द दाल। Not dal. Dal is the split one. The whole urad. Yeah. That is the mash. ओके, Yes, Yeah, because I am also from the Ayurveda side, इसलिए मुझे पता है. क्योंकि Mash this is is the the word whole. is okay, thank you. तो Am I because the audible? word is quite unfamiliar to me. Yeah. उड़द समझ में आ गया ना सबको? हाँ, Everyone उड़द। understood, right? So you get the whole thing. एक तो black भी होता है और वो peeled होता है, जो white वाला भी whole thing होता है. It is considered to be very nutritious and. Mittal का क्या हुआ? Bandwidth. Hello. Am I audible? Yes. ये शक्ल उड़द जो है ना वो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होता है, और उसका जो गुण बताए गए हैं वो मधुर और उष्ण होते हैं। जो आर्तव जो है, मतलब जो हमारा रज या फिर स्त्री का जो शरीर रहता है वो उष्ण बताया जाता है, कि इसीलिए हम लोगों को खट्टे चीजें ज्यादा पसंद रहती है, और जो पुरुष का शरीर रहता है वो सौम्य रहता है, तो उन लोगों को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद नहीं रहती है। इट इज अ अपोजिट नेचर। तो ये जो उष्ण वीर्य का है, ये हमारे आर्तव की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसे बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करता है, और स्त्री शरीर को जो पोषण की जरूरत रहती है वो पोषण भी हमें उड़द से मिलते हैं। For the people who are having PCOD or PCOS problem, for them also it has to be included in the diet. नहीं, उन लोगों को उड़द नहीं देना है। उन लोगों को, हम लोगों को उसकी कफ की उसको चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए तो एक जो वमन जो है पंचकर्म में वो सबसे अच्छा रहता है, और फिर वहां पे जो है वो उष्ण वीर्य का बताया है मैंने, लेकिन उसका जो रस है वो मधुर है।
तो कोई चीजें रहते हैं रस से काम करती है, कोई चीजें रहती है वो वीर्य से काम करती है। तो इसमें हमें और उसके रस का भी पोषण करती है, मतलब जो कुछ भी है वो आपको इंक्रीज कर, जो धातु है वो धातु बढ़ाते हैं। तो हमें पीसीओडी में वो कंसेप्ट नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोगों को उसको यहाँ पे मतलब ऐड नहीं करना है पीसीओडी में। पीसीओडी में आप वमन करवा सकते हैं अगर स्कैंटी मेंसेस। पीसीओडी में आप लोगों को हेवी मेंसेस है, स्टूडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि किसी के पास जाके आप कर लो करके। ओके, थैंक यू। Actually, na PCOD is a very complex subject. या Okay, इसमें there is a lot of permutations, combinations, and you have to actually think of many things before you give anything. Yeah. अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू दोषास, अकॉर्डिंग टू वो फिर जो दोष है उसमें पंचमहाभूत कौन से आ जाते हैं, उसके हिसाब से एज अ पंचभौतिक चिकित्सक मैं ये बताती हूँ कि पंचमहाभूत उसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जो मेंसेस कैसे है, हेवी है या स्कैंटी है, तो उसमें दोनों में भी उष्ण गुण आ जाता है। अगर जो लोकल एरिया में अगर उष्ण गुण बढ़ जाता है तो उस वक्त जो मेंसेस रहते हैं वो हेवी रहते हैं, और अगर ऑल ओवर बॉडी उष्ण गुण बढ़ जाता है तो जो मेंसेस रहते हैं वो स्कैंटी हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन, जैसे प्रीति मैम ने बोला कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत सारे रहते हैं, पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू दोषा, प्रकृति, आहार विहार, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चेंज होती रहती है। एक्चुअली मेरे समझने में तब कुछ ये हुआ, मुझे लगा आपने बोला ये देने से मीन्स द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी दे विल हैव नाइस ब्लीडिंग। मुझे समझने में आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई थी, वो क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके। Oh, Udad is not supposed to be given to the PCOD. Inducing vomiting would be good in PCOD. Nice. So you must have understood like how the Ayurveda Panchakarma is so much similar to the concept of the Shatakarma in the yoga. So, यस मैम, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो षट कर्म हम लोग मतलब जो षट कर्म बताए गए हैं वो योगी जो है उन लोगों के लिए बताए गए हैं जो रेगुलर बेसिस पे आसन अष्टांग योग फॉलो करते हैं, राइट। तो उनके शरीर में जो दोष रहते हैं वो दोष बहुत ही कम लेवल पे रहते हैं, तो जो षट कर्म करते हैं उससे वो दोष जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद के हिसाब से पंचकर्म कर रहे हैं तो उसमें हम पूर्व कर्म के हिसाब से स्नेहन और स्वेदन करते हैं, और फिर कुछ पर्टिकुलर डाइट उसके बिफोर पंचकर्म एडवाइस करते हैं। जैसे वमन के पहले हम दही भात या फिर कर्ड राइस या फिर उसको क्या बोलते हैं, दही वड़े जिसको बोलते हैं, वो या वो डाइट हम उसको ऐड करते हैं। और अगर विरेचन करवाना है तो उस वक्त हम उनको इडली या फिर कुछ फर्मेंटेड फूड उन लोगों को खाने के लिए मेदू वड़ा ऐसा उनको एडवाइस करते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर के जो दोष बढ़ जाते हैं और शरीर जो मतलब स्टमक में जमा होते हैं और फिर उसके बाद वमन या विरेचन प्रोसेस किया जाए। मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों को करना है तो हम लोगों को पंचकर्म जरूरी रहता है, लेकिन अगर आप योगा के रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आपके खुद के इसके लिए, तो आपको जो षट कर्म है वो आपको रेगुलर बेसिस में करना है। पंचकर्म आपको रेगुलर बेसिस में नहीं करना होता है, वो आप 2-3 साल में एक बार या फिर ऋतु के अनुसार भी आप वो पंचकर्म करवा सकते हो। According to season. यस यस यस, ये पंचकर्म और षटकर्म दोनों भी शरीर की शुद्धि ही करते हैं, लेकिन वो इस तरह से देखना चाहिए। तो आपके पास योग प्रैक्टिस का बैकअप है तो आप षटकर्म ऑफ कोर्स आराम से कर सकते हो, एंड दैट विल या आप षटकर्म अच्छे से कर सकते हैं, या फिर षटकर्म के बाद इवन आप वो कल के लेक्चर में आएगा ही कि जैसे अभी हाइपरेमेसिस है तो उन लोगों के लिए भी आप जो धोती क्रिया है वो धोती क्रिया करेंगे तो हाइपरेमेसिस काफी हद तक कम हो जाती है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना था इधर बिहार स्कूल ऑफ योग में भी ये बताते हैं कि जल धोती करने का है प्रेग्नेंट लेडी को,
but then Yes. everyone cannot tolerate it. वो problem आता है थोड़ा सा. हाँ. Anyways, it was really nice. Very good concept explained with proper correlation. We look forward to the second part of this lecture now. Yes, ma'am. So, Acha, one more thing to our regular people who are doing this course. Rajeshwari's client, जो आई थी ना Smita, if you all remember, she has delivered a baby girl, right, Rajeshwari? Rajeshwari, are you there? Yes, doctor. Yes, Her yes. name is Please share Smita. She the delivered good the news. baby girl. Good. Baby girl. Congrats. Yesterday she delivered. And Congrats to the how is teacher. the mother and the baby now? Both are fine. Yesterday I texted her husband. The husband say both are fine. And they say they will call me today. I'm still waiting for their call. They want to do a video call to me, so I'm waiting for the call. The baby is fine. I mean, it was suspected the IUGR. Rajeshwari? Okay, come back. Yeah. Am I audible now? Yeah. Okay. Both mother and daughter is fine. This was the last message yesterday. I communicate with her husband, Okay. and they told me they're going to do a video call for me today. So Yeah. I'm waiting for the call. Okay. So good. Please give our good wishes also to them. Sure. Thank you. Oh, that's nice. Thank you. And we will meet Dr. Mittal tomorrow again to continue with the lecture. So thank you, Dr. Mittal, so much. It was a great learning for all of us. आपने बहुत सारा टाइम निकाला हमारे लिए पेशेंटली सारा. नहीं मैम, मैं ऐसा Thank you. सोचती हूँ कि मेरी भी पढ़ाई होती रहती है. Okay. Okay, thank you everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you Bye. everyone. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. See you tomorrow.